شریعت کے بارے میں ایک چیز آپ نے سب سے پہلے سمجھنی ہے، کیونکہ پہلے ہم گروپوں کو دیکھ لیے، اب ہم ڈائریکٹ شریعت کے بارے میں جا رہے ہیں۔ شریعت کے اندر جب ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم شریعت کو نہیں مانتے، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم شریعت کو مانتے ہیں، تو اس کے اندر ہمیں یہ فائنل نہیں ہوتا کہ ہم کس کو مانتے ہیں اور کس کو نہیں مانتے۔ ایک بات سمجھیے پہلے کہ شریعت جو ہے، جیسے میں نے کہا ایک حکم ہے، اس کے 3 حصے ہیں، اسی طرح ایک شریعت ہے اور یہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہے۔ اس لیے آپ کنفیوز ہوتے ہیں، میں کنفیوز ہو جاتا ہوں، مجھے یہ ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے۔ ایسا لگتا ہے شریعت کوئی ڈنڈا ہے، کوئی ہتھوڑا ہے، پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے جو میرے اوپر وارد ہو رہی ہے، اب میرا چلنا مشکل ہے۔ پہلا پوائنٹ سمجھیے کہ شریعت 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کی جاتی ہے۔ یہ جو 613 احکام ہیں، یہ بھی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیے جاتے ہیں، ایک پازیٹیو ہے، ایک نیگیٹو ہے۔ پازیٹیو اور نیگیٹو میں فرق یہ ہے کہ یہ والے حکم ماننے ہیں، آپ نے ان پر عمل کرنا ہے، اور یہ والے حکم آپ نے نہیں ماننے ہیں۔ تو جو نہیں ماننے وہ نیگیٹو میں جائے گا، جو ماننے ہیں وہ پازیٹیو میں جائے گا۔ 613 سنتے ہی ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بڑا پتھر ہے، بڑا پہاڑ ہے جو مجھے ماننا پڑے گا یا مجھے عمل کرنا پڑے گا۔ 3 حصے، ان کو ہم تقسیم کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا حصہ اس کے اندر ہے اخلاقی شریعت۔ پہلا حصہ اس کا کیا ہے؟ اخلاقی شریعت، جس کے اندر بھائی کہہ رہے تھے ہمارے پاس 10 حکم ہے۔ میں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس کا ٹائم بتائیے کدھر لکھا ہوا، تو اس کا ڈائریکٹ آپ کو نہیں ملے گا کدھر لکھا ہے۔ جب اس کا پارٹیشن کریں گے تو اس کی پارٹیشن کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ آپ کے پاس 10 ایسے احکام ہیں جو آپ کو ماننے ہی ماننے۔ اچھا، میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ جن کو آج تک مسیح 10 احکام کہتے ہیں، بائبل ان کو 10 احکام نہیں کہتی، کیسا لگے گا؟ تھوڑا مشکل لگے گا نا بھائی، یہ کیا کیا ہے؟ جلدی سے نکالیے خروج 20 باب کی پہلی آیت۔ اور خداوند نے یہ سب باتیں فرمائی ہیں۔ کیا لکھا ہے جی؟ خداوند نے یہ سب باتیں فرمائی۔ یہ سب باتیں، یا کیا لکھا ہے کہ خداوند نے حکم دیے؟ لکھا ہے کہ خداوند نے یہ سب باتیں فرمائی۔ آگے کہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں۔ جو تجھے غلامی سے نکال کے لے گیا وہ میں ہوں۔ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ اس کو سمجھے، یہ جو 20واں باب ہے نا، اس کے پہلے 19ویں باب میں خدا ملاقات کر چکا ہے اپنی دلہن سے، بنی اسرائیل قوم سے۔ جب وہ آیا تو پہاڑ کانپ رہا تھا، بجلیاں گرج رہی تھی، تو یہ ملاقات تھی خدا کی اپنے لوگوں کے ساتھ۔ اور ملاقات کے اندر یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک دلہا اپنی دلہن کو بیاہ کے لے کے آتا ہے۔ اور یہ جو جس کو ہم 10 احکام کہتے ہیں، اس کو عبرانی زبان میں اس کو کتوبہ کہا جاتا ہے، اور کتوبہ جو ہے یہ نکاح نامہ ہوتا ہے۔ نکاح کرنا، اگر اس کو اور بھی آپ یقین کرنا چاہیں تو یہ جلدی سے یرمیہ 2:2 کو نکالیے۔ یرمیہ 2 باب ہے۔ تو جا اور یروشلم کے کان میں، تو جا اور یروشلم کے کان میں پکار کر کے کہ خداوند یوں فرماتا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں تیری جوانی کی الفت، میں تیری جوانی کی الفت اور تیرے بیاہ کی محبت کو، بیاہ کی محبت کب بیایا تھا اسے؟ جب نکال کے لے کے آیا تھا تو وہ دلہا دلہن کو بیاہ کر لے کے آیا تھا۔ میں تیری جوانی کی الفت کو اور تیرے بیاہ کی محبت، تیرے بیاہ کی محبت کو یاد کرتا ہوں۔ اور پھر آپ پڑھے کہ تو بیابان یعنی بنجر زمین میں میرے پیچھے پیچھے چلی۔ تو گویا یہ جو 20واں باب ہے خروج کی کتاب کا، یہ دلہا اور دلہن کی گفتگو ہے۔ اور میں پہلے بھی بڑی دفعہ یہ پیغاموں میں کہہ چکا ہوں کہ ایک اچھی بیوی اپنے شوہر کے منہ سے نکلنے والی ہر بات کو حکم کر کر چلے۔ اس لیے یہ 10 احکام ہیں، حالانکہ خدا نے یہ باتیں کی ہیں بنی اسرائیل سے، میں نکال کے لے کے آیا ہوں۔ جیسے دلہا اپنی نئی ڈویلی دلہن کو لے کے آتا تو یہی باتیں سیم کہتا ہے، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں،
اور میرے ساتھ کوئی دوسرا کھڑا ہوگا میں یہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں, میں غیرت رکھنے والا, میں کاٹ کے رکھ دوں گا اگر میں نے تیرے ساتھ دوسرا کو دیکھ لیا تو. یہ خدا کی غیرت, اور یہ غیرت ہر آدمی کے اندر ہے. بیوی کی ساری باتیں برداشت ہو سکتی ہیں, لیکن اپنے ساتھ کوئی دوسرا کھڑا دیکھے, کھڑا کیا دیکھے, بات تک برداشت نہیں کر سکتا. ہوتا یہ نہیں؟ اور یہ اسی طرح کا معاملہ ہے. خدا بنی اسرائیل کو لے کے آئے اور یہ 10 احکام ہے ایک بیوی ہوتے ہوئے مجھے یہ ماننے ہی ماننے. تو یہ اخلاقی شریعت ہے, اخلاق کے اندر آتا ہے بھائی میں نے یہ بھی نہیں کرنا, میں نے یہ بھی نہیں کرنا, میں نے یہ بھی نہیں کرنا. اب دوسری بات اس کے اندر ہے معاشرتی یا معاشرے کی شریعت. معاشرے کی شریعت کیا ہے؟ آپ نے باہر کیسے چلو, پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا. آج ہم پڑوسی کے ساتھ بگاڑ سکتے ہیں؟ آپ دیکھیے بائبل کے اندر, پرانے عہد کے اندر 613 احکام. کتنے جی؟ آپ کو اچھا لگے گا کتنے احکام ہیں؟ اس کو جمع کریں گے تو کتنے بنے گے؟ 6 اور 1 7 اور 3 10. نکلیں گے نہیں نکلیں گے؟ 613 کا جب نچوڑ نکالیں گے تو 10 نکلیں گے. 10 کا نچوڑ نکالیں گے 1 نکلے گا. اور جس نے ایک حکم توڑا اس نے ساری شریعت کو توڑا, اور جو ایک حکم ہے اس کو محبت کہتے ہیں. اور بائبل میں لکھا ہے محبت شریعت کی تکمیل ہے. سمجھ آیا نہیں آیا؟ 613 احکام سمجھ آنا چاہیے. 613 احکام ٹوٹل کتنے بنے گے؟ 6 جمع 1 جمع 7 3 برابر 10. اب 10 کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. تختیاں کتنی ہیں؟ 2. 2 ہی کیوں؟ 3 کیوں نہیں؟ 4 کیوں نہیں؟ 10 کیوں نہیں؟ یہ بھی نبوتی طور پر نبوت سمجھیے. جب پہلی دفعہ تختی بنائی گئی تو گناہ کی وجہ سے اس کو توڑ دیا گیا. گناہ کی وجہ سے ہمارے کتنے دل ہیں؟ اگر میں کہوں تو اگر میں کہوں تو پر ایگزامپل تو دینے دینا, آگے بڑھنے تو دینا. تو میں کہوں تو مانے گا نہیں مانے گا؟ ایک نہیں مان رہا بند. لکھا ہے میں تمہیں نیا دل دوں گا. لکھا یا نہیں؟ کتنے دل ہیں؟ ایک پتھر دل, ایک نرم دل. بڈھی نال بچے نال ایک فرق دل تے باہر والے نال نہیں ہے. اور نہیں ہے جی, یہی دنیا یہی ہے. دو تختیاں کیوں بنائی گئی؟ یہ نبوت ہے, بندے کی نبوت ہے. پہلی تختی گناہ کی وجہ سے توڑ دی جاتی ہے, اور پھر خدا نے پہلی تختی بھی خود بنائی, حکم بھی خود لکھے. نبوت اس میں کیا ہے؟ تختی اب تو نے بنانی ہے, حکم اب میں لکھ دوں گا. اور اسی کو نہایت نامہ کہتے ہیں. تختی جب گناہ کی وجہ سے پرانی ٹوٹ جائے نا, اور جب توبہ کر کے نئی تختی پیش کرے, خدا شریعت دلوں پر لکھ دیتا ہے. یہی تو بھید ہے. کیا کرے ٹوٹی اور سنگ دل کا, پتھر دل کا اسی نہیں ماننا کہ شریعت لاگو. سخت دل والے کے بننا, یہ تو جن کے نئے دل ہیں وہ مانتے ہیں. جو نرم ہوتے ہیں خدا کی بات ماننے کے لیے جھک جاتے ہیں. یہ نیا دل ہے. اور یہاں دیکھیے 2 حکم ہیں. اب 2 کو پہلے 613 کو 10 میں کیا گیا, 10 کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. پہلی تختی پر 4 حکم لکھے گئے اور دوسری تختی پر 6 حکم لکھے گئے. پہلے جو 4 حکم ہیں یہ خدا کے بارے میں, اور دوسرے جو 6 حکم ہیں وہ انسان کے بارے میں. پہلے جو 4 حکم ہیں وہ خدا کے بارے میں, اور دوسرے 6 حکم کس کے بارے میں؟ ویسے بائبل میں لکھا ہوا ہے تو خداوند اپنے خدا سے دل و جان سے, لکھا ہے طاقت سے, عقل سے محبت رکھ. لکھا یا نہیں؟ جب یہ کہا جائے گا کہ
खुदा से मोहब्बत रख, तो ये पहली तख्ती है। अपने सारे दिल से पहली तख्ती से मोहब्बत रख। पहली तख्ती पर 4 हुक्म है, किसके लिए? खुदा के लिए। अब लिखा है कि सबसे बड़ा हुक्म, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, कहना भी चाहिए, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लोगों को जितना समझ में आएगा वो कह लेंगे, कोई बात नहीं। ये चाहते आदम है कि जाओ सारी कौमों में जाके मुनादी करो। बाइबल इसको रिशाद आदम नहीं कहता। यीशु से पूछा गया सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? पूछा जी नहीं? तो यीशु ने क्या कहा? बपतिस्मा दो, लोग कौन जाए? कहा सबसे बड़ा हुक्म ये है, खुदा से मोहब्बत है। नहीं कहा और बपतिस्मे 1000 दे ते मोहब्बत ही ना रखो, है? क्या फायदा? मैं इन्हें डोबे दिते, ए डोबे ही दिते ने, डोबे रहो, गां नहीं जाना, डोबे ने, चल में सारे ने डोबे ने, वही मैं कह रहा हूं, डोबे ने, चल और तू गुलाम है तो गांव गांव क्या नहीं सकता। मैं ये कह रहा हूं कि पहली तख्ती खुदा की तरफ पॉइंट कर रही है। पूरे दिलो जान से खुदा से मोहब्बत रख। इसके बराबर दूसरा हुक्म ये है, किसके बराबर? भाई खुदा ना मोहब्बत रखनी है तो एदे बराबर दूजा हुक्म की है, ये माने तो सही ना। ते खुदा दे पड़ोसी कौन है? पहली तख्ती दे नाल दूजी तख्ती केड़ी है खलोती? इसको मुआशरती शरीयत कहते हैं। इंसान पहला इसके अंदर जो 5वां हुक्म है क्या है जी? बाप और मां की पहला दूजी तख्ती पहला हुक्म केड़ा है? खुदा ने। वहां पहली तख्ती पे खुदा को रखा गया, यहां दूसरी तख्ती पे पहला खुदा मां बाप को रखा गया। पड़ोसियां नाल ते बनदी है ते मां प्यो नाल नहीं बनदी। मां प्यो ने चंगी गल कहने ते पड़ोसियां ने गलत पड़ी। उन्हें कहना ठीक है जो मर्जी करी जा, तेरा साढ़े नाल की मतलब है, जो तेन अच्छा लगता करी जा। ते मां प्यो ने तो जड़ी गल भैड़ी लगदी ने मना करना। समझे इस बात को? 2 तख्तियां बनाई गई, दोनों को खुदा का पड़ोसी इंसान को बनाया गया। पड़ोसी वो 6 हुक्म है जो इंसान को दिए गए, और ये मुआशरे की शरीयत है। इसके अंदर बहुत सारी बातें, नए अहदनामे को इन 3 हिस्सों में आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा। ये मुआशरे के अंदर है। अगर किसी को बुरी निगाह से देखा, तूने गुनाह कर लिया, गाली निकाली, गुनाह कर लिया। मुआशरे में रहते हुए शराब नहीं पीनी है, मुआशरे में रहते हुए किरदार गलत नहीं करनी, नहीं लिखा? ये हमारी मुआशरती या मुआशरे की शरीयत है। अब इसके अंदर तीसरी शरीयत भी है, या तीसरा इसका हिस्सा है जिसको दीनी शरीयत कहा जाता है या रस्मी शरीयत कहा जाता है। अब ये जो रस्मी शरीयत है, इसके अंदर आपकी आती है कुर्बानियां, इसके अंदर आती है आपकी हैकल की इबादत, इसके अंदर आती है आपकी ईदें। अब आपने बताना है तीनों में से खत्म क्या है। 3 मैंने आपके सामने रखे हिस्से। क्या हम मुआशरे में जैसे मर्जी घूम सकते हैं? नहीं। गुआंढी ने जिंदा मर्जी सलूक रखिए, कर सकते हैं? नहीं। और फिर जो पहला पॉइंट हमने रखा, अखलाकी शरीयत, जैसी मर्जी मुंह से बात निकालो। नहीं। लिखा है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, और ये नए हमारे पास से लिखा। और फिर यीशु मसीह के भी मत्ती के दिल में काल्पनिक अल्फाज लिखे, आगे भी हो सकता है, हर नकामी बात का हिसाब लिया जाएगा। नहीं लिखा? तो अगर हम कहें कि हम आजाद हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ भाई कोई आजादी नहीं है। गुनाह के लिए आप ना कल आजाद थे ना आज आजाद। तो ना आप इस अखलाकी शरीयत से आजाद हो, ना आप यहां पर मुआशरती शरीयत से आजाद हो। आप
यही वो कंफ्यूजन है कि जिससे हमें ये समझ नहीं आती कि ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ या नहीं ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਨੇ ਨਹੀਂ। वजह क्या है? मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक। ये वजह है कि जब सीखा नहीं गया, दुरुस्त सिखाया नहीं गया, और जब दुरुस्त सिखाया नहीं गया तो यीशु ने कहा अंधा अंधे को राह दिखाएगा तो दोनों ऊपर में गिरेंगे। यही सबब है कि जिसकी वजह से आज बहुत सारे लोग हलाकत की तरफ जा रहे हैं। ना चाहते हुए भी हम ये कह रहे हैं असी शरीयत को नहीं मानते, जबकि चल हम उसी के मुताबिक रहे। प्रॉब्लम जहां पर आएगी मैं वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि इसके आगे प्रॉब्लम आएगी। लेकिन इसके आगे मैं थोड़ा सा पॉइंट और बढ़ाना चाहता हूं। अब वो देखेंगे जो बाइबल में लिखा है कि शरीयत को नहीं मानना, शरीयत को मानना। अब इस पॉइंट पर हम जाने वाले हैं। मानना नहीं मानना, मानना नहीं मानना। ना मानने वाले हवाले क्या हैं, मानने वाले हवाले क्या हैं। अब दो तरह से, एक हवाला यहां से पढ़ेंगे, एक यहां से पढ़ेंगे, दो बातें चलेंगी। शरीयत अहम है, इसको पहले पढ़ते हैं। शरीयत अहम है, इसको पढ़ेंगे पहले, ना वाले को पढ़े, पहले ना वाले को पढ़ ले। पहले वो पढ़ लेते हैं जो कह रहे कि नहीं ऐसे करके। देखिए इससे जल्दी से गलतियों का खाते निकालिए। दूसरा बाब उसकी 16 आयत में देखिए, और इसके साथ रोमियो 3 बाब की 20 आयत में देखिए। तो भी ये जानकर कि आदमी शरीयत के अमाल से नहीं बल्कि सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरता है, खुद भी मसीह यीशु पर ईमान लाए, ताकि हम मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरे, ना कि शरीयत के अमाल से, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर रास्तबाज ना ठहरे। सारे बोले आमीन। आमीन। यहाँ पे एक लफ्ज उठाते हैं, शरीयत के अमाल से कोई बंदा रास्तबाज नहीं ठहरता। ठीक है जी, कंफ्यूजन आएगी। भाई केड़ी पट्टी पढ़ा रहे हैं, एवे लिया वाला असि शरीयत में रास्तबाज नहीं ठहरते। ठहर जा भाई, ठहर जा। एक और वाला पढ़ लेते, किसी के साथ मिला के देख लेते, शागिर्दों की लड़ाई चला के देख लेते। लड़ाई तो लड़ाई से साड़ी तो नहीं ना, पर उसकी तो किसी और बंदे तो चोट पा देंगे। आए जी देखे जरा वाला नहीं, मैं जो बताऊंगा उसको देखना। यकूब के खाते से, बल्कि सॉरी हाँ मैंने पहले जो बताया उसको पढ़े। रोमियो 3 की 20 आयत को, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर उसके हदूर रास्तबाज नहीं शरीयत के अमाल से कोई शख्स रास्तबाज नहीं ठहरेगा। नहीं ठहरेगा। इसलिए कि शरीयत के वसीला से तो गुनाह की पहचान होती है। शरीयत के वसीला से तो सिर्फ भाई गुनाह की पहचान होती है। आदम ने हवा को कह दिता जाता ना भाई गुनाह कर रहे कोई गल नहीं, पहचान तो तेन कराई नहीं थी। गुनाह की पहचान तो तेन करा दी, तो फिर गुनाह की पहचान हुई तो बाप क्यों कटे? और आदम हवा को गुनाह की पहचान नहीं हुई थी ना, नेको बद की पहचान में हम में से एक ईमानत हो गया। तो ये जो सिर्फ पहचान करानी है, ये बाग से बाहर निकाल देता है। सिर्फ पहचान करवाना ये इंसान को बाहर निकाल सकता है। कि पहचान से है पर अमल अमल ना तो रास्तबाज है ही नहीं। हेलो, अमल से कोई रास्तबाज ठहरता ते आदम हवा नु अंदर ही रहन देना सी ना, गुनाह हो गया सी ते तां की पहचान ही आई सी ना दोवां। क्यों निकाला है भाई? शरीयत के वसीला से पहचान होती है, तो जब उनको हो गई तो बाहर क्यों निकाला? भाई जब पहचान थी तो अमल क्यों नहीं किया? अमल की तो जरूरत नहीं ना, अमल के बगैर ही रास्तबाज है। नहीं,
बाइबल कह रही, पढ़ेगी वाला एक मेरे से तुम्हारे से। बाइबल तो ये कह रही है कि नहीं रास्तबाज कोई बंदा शरीयत के अमाल से, क्योंकि शरीयत के बाद से कोई बशर उसके हदूद भाई इसको ओपन करे ना, आवाज को खोले ना, क्या मसला, खोल के तो ऊपर करेगा। अभी पढ़े, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर उसके हुजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा, कोई रास्तबाज नहीं है शरीयत के अमाल से, इसलिए कि शरीयत के वसीला से तो गुनाह की पहचान होती है। भाई आदम हवा को पहचान हो गई ना, फिर बाद में रहना चाहिए था। लेकिन मसला क्या हुआ, अमल नहीं किया। अमल नहीं किया, तो अमल से कोई रास्तबाज नहीं ठहरता। ऐसा। ये हवाला कह रहे हैं। जी। अमल करोगे तो फिर रास्तबाज ठहरोगे। नहीं, वो कह रहे हैं नहीं ठहरता। बॉसी ने लड़ पई है, फिर दुनिया ने लड़ाना ना, असली आपस ही। क्योंकि मैंने कहा पलूस को किसी और के साथ देख लेते हैं भाई, जो तू कह रहा है वो क्या कह रहे हैं। यकूब का हवाला देखिए, 2 बाब 24 है। बड़े ध्यान से अपने आप को एक्टिव करना है, क्योंकि हम हवाला जात पढ़ रहे हैं। बस तुमने देख लिया बस तुमने देख लिया कि इंसान सिर्फ ईमान ही से नहीं। आप देखिए, मेरी तरफ देखिए, ये जो आयत कह रही है, यकूब भाई कह रहे हैं, तुमने देख लिया कि पादरी सैमुअल ने आपके सामने आदम हवा को रख दिया है। देखा या नहीं जी भाई, इधर ही है। जी जी देखा या नहीं, पादरी सैमुअल ने दिखाया आपको आदम हवा। जी। क्या दिखाया, इंसान सिर्फ ईमान ही से नहीं बल्कि अमाल से रास्तबाज ठहरता है। कैसे, अमाल से। पलूस कह रहा है माल से रास्तबाज नहीं ठहरता, यकूब कह रहा है माल से रास्तबाज ठहरता। ये सारा गुनाह की किसकी मान है भाई, पलूस की या यकूब की? अच्छा, दोनों छड़ यसू ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਚਾ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ, दोनों बनने हैं। यसू सी मुकाशफा की किताब में ये कह रहे थे, ये ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਪੜ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, लिहा इनके अमाल इनके हैं, इनके अमाल इनके, ते वैसे साफ होना किहदे नाल है, अमाला नाल होना या नहीं, ते फिर रात तो बाद अमाला नाल होना या नहीं। अगर उसे काम चंगे ना निकले किधर जाएंगे, किधर, बोलो तो सही ना जी, जन्नत में जाएंगे। सही है जी। अगर काम अच्छे ना निकले, बुरे निकले, तो जाएंगे जहन्नम में, बिल्कुल जाएंगे। जाएंगे। फिर पलूस की बात का क्या करना है, सानू केड़े वक्त पाया था कि शरीयत के मुताबिक बंदा रात बाद नहीं ठहरता, ते रात बाद ठहरता कैसे, अमाल ना नहीं ठहरता, अमाल ना ठहरता है। क्या कंफ्यूजन है भाई। अरे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹੋ, ਦੇਖਣ ਦਾ ਬਾਤ ਨਾ ਦਿਓ, ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਾਲ, ਅਮਲ ਨਾਲ। यही तो भी कह रहे हैं, होने खाली ईमान रखना है कि अमल करना है। दोनों चीज़ां। अच्छा, एक और हवाला देता हूँ, लिखा है ईमान अमल के बगैर मुर्दा है। पलूस भाई सुनो, खबरदार हो जाओ। ईमान से बंदा रास्तबाज ठहरता है, ते ईमान दे नाल अमल ही कोई नहीं। ते ईमान क्या चीज है, मरिया ते मरे ईमानदार आसमान की बादशाह चढ़ जाएंगे, वास्ते जन्नत कार चलने वाली चीज़ डाल दे। अमल ते करना पड़ेगा। अमल से ते जेड़ा बंदा ये कहे कि मैं बड़ा ही अमल करना, इसको समझना बात को, जो पहले वाली आयत पढ़ी थी उसको देखो, बल्कि गलतियों के साथ में दूसरे बात समझ में आती है, इसको मैं पढ़ा था उसको देखो, बल्कि इसको भी छोड़िए। ये पढ़ लीजिए, तीसरे बाब की 10 आयत, गलत के तीसरे बाब की 10 आयत। क्योंकि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मतहत हैं। ये क्या है, जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं,
वो सब कैसे हैं? लानत के तहत हैं। अब तीसरा वाला आ गया। मैं आपको जल्दी खत्म करता हूं क्योंकि पॉइंट अभी बहुत ज्यादा है। मैं आपको सादा बात बताता हूं। यीशु ने कहा जब तू कुछ देते है ना तो तेरे दाएं हाथ को पता चले और बाएं को पता, इसमें प्रॉब्लम क्या थी? अच्छा, इसको नीचे से देखेंगे ना तो ये कभी भी आप बात समझ नहीं पाएंगे। आप सच्ची अपना बटुआ कटना है जेब क्यों तो सच्चे नहीं काट के बटुए के पैसे काट लेने खबे ना फड़ांगे तो सच्चे ना निकलेगा नहीं तो एक ही आंखा को पट्टी बन खबे आप देते के पता नहीं चल रहे अरे ने बटवा तैयार करके सच्चे ना कई इनको पता है मैं माल दे रहा पता नहीं चलेगा, पता तो चलेगा। तो फिर यीशु कह रहे थे दाएं को पता चले बाएं को पता, इसका क्या करना? तो ये पॉइंट है बीच में जिसको रख के समझेंगे। दाएं से मुराद मेरे बाप के मुबारक लोग, दाएं से मुराद मेरे बाप के, बाएं से मुराद, दाएं से मुराद ईमानदार, बाएं से मुराद बेईमान। पता तो हम कोई चंगा काम करो ते बेईमान हो चुके नुक्स करने लगते हैं। कोई चंगा काम करो ना ते ਜਿਹੜੇ बेईमान लोग ने ना वो चंगे काम जो भी नुक्स करते हैं। इस पास मना किया गया है कि अगर कुछ देना है ना तो अपने ईमानदार भरावां को दस, पर बेईमानों को नहीं दसना। क्यों? बेईमान आपकी उस नेकी को गलत रंग चाड़े। ले हुन ऐने चूहे खा के बढ़िया होगा। बेईमान आपकी किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आप रोजा रखेंगे तो बेईमान चले और रोजे रखने लग गए। तौबा कर ले होने ने भी तौबा कर। ईमानदार क्या करेंगे? खुशी मनाएंगे। फरिश्ते आसमान पर खुशी मनाएंगे, जमीन पर नीचे लोग खुशी मनाएंगे। क्यों? ईमानदार आपको दुआ देंगे। आप कोई अच्छा काम करके देखें, खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको बढ़ाए, खुदा आपको और भी सरफराज करे। ये कौन है? ये बाप के मुबारक लोग हैं और इनके मुंह से मुबारकबादी ही निकलेगी। लेकिन दूसरी साइड वाले हैं आपके खिलाफ चले। अब इसको समझिए, दो वाले में देखें। ये जो ईमानदारी है जो रात बात ठहर रहे हैं अमाल से, और ये जो अमाल से रात बात नहीं ठहरते, इस दोनों के अंदर ट्यून का फर्क है। एक ट्यून है जिसको समझना है तो आपको समझ में आएगा। लूका के इंजील में देखिए 18वें बाब में, लूका के इंजील 18वां बाब चलिए। यहां पर एक स्टोरी लिखी हुई है 18वें बाब के अंदर। एक बंदा है यहाँ पे दुआ करने के लिए आया हुआ। ये नामी आयत से है, सिर्फ हवाला नहीं पढ़ते, आपसे बात देखते कैसे समझ आएगी आपको। दो बंदे यहाँ पे आए हुए। एक बंदा है जो गिनती करवा रहा है। क्या गिनती करवा रहा है? मैं हफ्ते में 2 बार रोजे रखता हूं, मैं सारे माल पर दायकी देता हूं। ये जो मेरे पीछे है ना, मैं गुनहगार वर्गा नहीं। दायकी देना गुनाह नहीं था, खुदा की फरमाबरदारी है। बाकी हुक्म मानना, रोजे रखना खुदा की फरमाबरदारी है। ये अपने अंदर तसव्वुर कर रहा है कि जो मैं कर रहा हूं वो नहीं कर रहा। यहां आज हमारे मुआशरे में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो रेगुलर चर्च जाते हैं ना, वो बाइक वालों को हकीर जानते हैं। नुकनी यरी के आउंदा ही नहीं, मैनू वे मैं टाइम तो पहला पढ़िया हूं। ये क्या कर रहे हैं? अपने अमाल पर जो मैं कर रहे हैं ना, चर्च का कोई बंदा नहीं करता। ऐ लानती भाई, तुझे तेरी लानत मुबारक।
और यही वो शरीयत की लानत है। जब हम अपने किए हुए काम पर फख्र करते हैं, मैं जो करता हूं इस जैसा कोई नहीं कर सकता, मेरे वर्गा कोई जज से दावेदारी बंदा हो, और फिर इधर बैठा उधर बैठा उधर बैठा उधर बैठा, हर बंदे को अपनी बीवी सुना रहा है, मेरे वर्गा कोई नहीं। आज ना फलाना गुआंढी है ना साडा, बड़े दिन से भी नहीं जाता, जो बड़े दिन से याद के ना ते पीछे याद के खुदावन मैनू माफ कर, मेरे को टाइम ही नहीं बनेगा। ते जेड़ा पूरा साल आ रहा सी ना, वो पिछला बारों बारी पाक साफ होकर निकल जाता, ते अपने घुमंड दे अंदर ही तकब्बर करके शैतान वर्गी सबाबा। ये फर्क है। शरीयत पर नहीं फख्र करने की बात, शरीयत के अमाल की बात हो रही है। जो शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं, मैं ये करता हूं, मैंने ये किया है, मैंने चर्च को पंखे दिए, मैंने लेंटर में इतने पैसे दिए, क्या किया? किए तो कोई एहसान किया है? अरे साडे वास्ते बड़ा बड़ा आसान है, अदा जिन फलाना बंदा असली अपने मशहूरी करते हैं। ये है वो शरीयत की लानत कि जब हम कोई काम करके लोगों में दिखावा करें। और ये सूच ने कहा था, अपने नेक काम लोगों को दिखाने के लिए न करो। और यीशु का ये हुक्म है कि जब हम कोई करके दिखावा करते हैं तो तब हम बरकत नहीं लानत के नीचे आते। बरकत नहीं लानत महसूस करते हैं। ये है वो पौलुस की बात कि जो शरीयत के अमाल पर तकिया करने वाले लोग हैं, वो लानत के नीचे हैं। हालांकि यही पौलुस कहेगा, शरीयत पाक है, हुक्म भी पाक। और देखिए इधर टॉपिक स्टार्ट हो चुका है पौलुस की बात को। पतरस भाई क्या कह रहे हैं? दूसरा पतरस है 3:16 नंबर है। और अपने खतों में इन बातों का जिक्र किया है जिनमें बात बातें ऐसी हैं जिनका समझना मुश्किल है। बात बातें ऐसी हैं जिनका समझना मुश्किल है। और जाहिल और बेज्ञान लोग उनके मायनों को और सहीफों की तरह खींच तान कर अपने लिए हलाकत पैदा कर। किनको? पौलुस की बातों को पतरस कह रहा है, उसकी बातें मुश्किल है। पतरस यीशु का जोशीला शागिर्द है, यीशु के लिए जान तक दे दी उसने। वो गवाही दे रहा है पौलुस की बातें मुश्किल है। और ये आज तक ये मुअम्मा बना हुआ है। पौलुस की बातें, बड़ी सारी बातें ऐसे हैं जिनको बंदा समझ के तो कंफ्यूज हो जाता है, ये क्या लिख रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सिर्फ एक आयत खींचते हैं, उसका पिछला हिस्सा पढ़ते ही नहीं है, अगला हिस्सा पढ़ते नहीं है, आप हमेशा गलत तशरीह करें। आप हमेशा गलत जाए। अगर आपने खत पढ़ना है, सबसे पहले आपको मालूम हो कि खत लिखा किसको गया है। खत लिखने की वजह क्या है? खत के पीछे जिस इलाका में ये खत गया है उसके अंदर प्रॉब्लम क्या चल रही थी, क्यों ये बात कही गई। अब इसी पौलुस की बात करें तो एक जगह पर ये खतना करवाता है, एक जगह पर खतना नहीं करवाता। पौलुस अपने बारे में कहता है, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना। क्यों बना? क्योंकि जहां खतने की जरूरत थी उसने करवा दिया, और जहां नहीं जरूरत थी वहां उसने नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि वो यहूदियों और गैर कौमों दोनों में काम कर रहा है। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमने जिनको डूबा हुआ है सिर्फ उनको ही हम गुलाम करते हैं। हम उनको सिर्फ बातें सुनाते, चर्च के बाहर तो जाना पसंद नहीं करते। जहां पर यीशु ने कहा जाओ सारी कौमों में जाके शागिर्द बनाओ, वहां तो जाना पसंद नहीं करते। अपनी बातें अपने लोगों को सुना के तो बस राती बात है, बस आपको नाम सुना। और चर्च के अंदर कोई बंदा पादरी साहब को पूछता नहीं आप क्या सुनाते हो, लोग राजी बात के बाद ठीक है चल गए।
اور ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں، جو بندہ صرف اتوار کو چرچ آتا ہے، صرف اتوار کو، میرے مطابق تو وہ زیرو لائن سے بھی پیچھے، بے شک اس نے 10 دفعہ بپتسمہ لیا، کوئی زندگی نہیں ہو سکتی۔ اتوار والے لوگ کوئی زندگی نہیں، کیونکہ پیغام تو ابھی سنائیں گے تو 5-10 منٹ بعد وہ بھول جاتا ہے۔ شیطان ساتھ ہی آتا ہے، یسوع نے خود کہا تھا پرندے آ کے چگ لیتے ہیں، اور پرندوں کی تشریح یسوع نے کی، ابلیس آتا ہے اور وہ ساتھ ہی لے جاتا ہے، کلام یاد ہی نہیں ہوتا، عمل کیا کرتے ہیں؟ اتوار والے لوگ فیل لوگ ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ ہر روز رسول جمع ہوا کرتے تھے، ہر روز دعا کرتے تھے، ہر روز بائبل پڑھتے تھے، ہر روز تعلیم حاصل کرتے تھے، یوں اور روح قدس یافتہ تھے۔ اور روح قدس یافتہ ہونے کا مطلب غیر زبان بولنا نہیں، کیا غیر زبان بول رہے تو آپ روح قدس یافتہ ہے؟ میرے نزدیک یہ بھی روح قدس یافتہ ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ غیر زبان تو بے ایمانوں کے لیے نشان ہے، ایسا بائبل میں لکھا ہو۔ غیر زبان بے ایمانوں کے لیے نشان ہے، ایمانداروں کے لیے نہیں۔ تو ہمارا ناپنے کا اپنے مقصد اپنے پہ ماننا ہے۔ میرے مطابق میں جو سمجھتا ہوں، ایک بندہ اپنے سفید بالوں کو کالا کرتا ہے، یہ روح قدس یافتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ یہ خود نافرمان ہے؟ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ تو کالے کو سفید نہیں کر سکتا، تو خدا کے چینل میں جا رہا ہے، کیسے روح قدس یافتہ؟ میرے نزدیک میں یہ مانتا ہوں کہ آپ کے سر سے لے کر پاؤں کے تلوے تک اگر آپ چھٹے والے بپتسمے کو نہیں مانتے تو میں آپ کے چھٹے والی نعمتوں کے مطابق بھی آپ کو روح قدس یافتہ نہیں مانتا۔ اگر کلام میں پانی میں پورا ڈوبنا لازمی ہے تو کلام میں پورا ڈوبنا لازمی ہے۔ آپ کے سر سے لے کر پاؤں کے تلوے تک پوری باڈی وہی ہو جو بائبل میں لکھی۔ آپ کے کان بھی فرما بردار ہو، آپ کے ناخن بھی پاؤں کے ناخن تک فرما بردار ہو، پھر آپ روح قدس یافتہ۔ جیسے پانی میں پورا ڈوبنا ہے ویسے کلام میں پورا ڈوبنا ہے۔ اور یہاں سے جب کوئی بندہ کلام میں پورا ڈوب جاتا ہے نا، پھر میرے سوال کا جواب آتا ہے، کس کو کامل کیا؟ تب آپ جھٹ سے کہیں گے میں کامل ہوں، میں کامل ہوں۔ کیوں؟ یسوع کی قربانی کے بعد کوئی قربانی نہیں ہے، میں کس پر آنکھیں لگا کے بیٹھا ہوں؟ اگر آج آپ کامل نہیں ہیں تو آپ کبھی بھی کامل نہیں۔ لکھ لیں میری بات کو اپنے دلوں پر لکھ لیں۔ اگر آپ آج آپ کا ہاتھ اوپر نہیں جاتا نا، یہ کبھی بھی نہیں جائے گا۔ یسوع کی قربانی تو کامل کر چکی ہے، یسوع کی قربانی ہمیں کامل کر چکی ہے۔ اس کے بعد کوئی قربانی گناہ کے لیے نہیں ہے۔ کس کی آس پہ بیٹھے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم من مانی کرتے ہیں، جہاں سے دل کرتا ہے مان لیتے ہیں، جہاں سے دل کرتا ہے نہیں مانتے، اور جس آیت کی جو دل کرتا ہے تشریح کرتے ہیں۔ لیکن روح قدس یافتہ بندہ اگر وہ دیکھنا چاہتا تو وہ یسوع کو دیکھے، یہ ہے روح سے بھری ہوئی شخصیت، ایک بھی غلطی اندر نہیں تھی۔ یہ ہے پیٹرن یسوع مسیح۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں روح قدس یافتہ ہوں تو یسوع کے ساتھ اپنا آپ کمپیئر کر کے دیکھیے، نہیں تو حوالہ میں دے سکتا ہوں۔ بائبل میں لکھا ہے جو خدا سے پیدا ہوا ہے، جو خدا سے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ کون کہہ رہے تھے؟ میں کہہ رہا ہوں، یہ بائبل کا معیار ہے۔ جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ابھی تک ہم اس پرابلم کا شکار ہے نا تو پھر ہم کسی پچھلے بندے میں کوشش دور کریں۔ پلوس بھائی کے بارے میں اسٹیٹمنٹ آ گئی، ایسی باتیں اس نے لکھی ہیں جو سمجھنا مشکل ہے۔ اب کچھ باتیں
मुश्किल जो है उसको देखते हैं। रोमियो 3 बाब के 28 आयत में देखिए, रोमियो 3 बाब के 28 आयत। चनाचे हम ये नतीजा निकालते हैं हम ये नतीजा निकालते हैं कि इंसान शरीयत के अमाल के बगैर ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरता है। कैसे ठहरते? शरीयत के अमाल के बगैर ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरता है। सिरे से काटे नहीं, फिर से अमान से रास्तबाज के अमाल के, शरीयत के अमाल के बगैर ईमान के सबब से रास्तबाज है। अब देखिए, रास्तबाज निजात याफ्ता होना, आसमान की बादशाही का वारिस होना, खुदा के साथ तख्त पर बैठना, अगर सारी बातों का मिक्सअप करें तो शायद हम यहां से भी प्रॉब्लम का शिकार हो। और फिर हमारे पास रास्तबाज होने का कुलिया क्या है, किस पर रास्तबाज करें? पहले तो यहां पर रास्तबाज किसको कहा जाएगा? कोई मायने निकाल सकता है? कोई अगर डिक्शनरी निकालना चाहे तब बता दे, अगर किसी को वैसे याद नहीं होता। रास्तबाजी के माने क्या है, या रास्तबाज के माने क्या है? रास्त मतलब सच्चा होता है ना जी, सच्चाई पर चलने वाला। मुश्किल है सच्चाई पर चलना, सच्चाई पर चलने वाला, ये कहेंगे ना, बगैर गुनाह के शख्स, ये भी ठीक है। और कोई किसी को नहीं आता है रास्तबाज का, कोई मानी नहीं आता है, तो ये दो बताइए। कानून पर अमल करने वाला जी, कानून कानून पर अमल करने वाला, सही है, ये भी सही है जी। सीधी मतलब कलाम की जो बात समझ है, सीधी राह पे चलने वाला, यही है ना, ये हम समझ रहे हैं। ये देखो, मैंने कहा प्रॉब्लम तो यहां पर है, जिसको जो समझ में आएगा वो कह देगा। तो अब 4 बातें मैंने आपसे दी है, चारों की तशरीह अलग है, बातें सारी सही है पर तशरीह सबकी। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूं बाइबल में रास्तबाज किसको कहा है। जुबानी पानी करते वाले निकालते। जब खुदा अब्राहम को बाहर लेकर आया और उसने कहा, देख देख सितारों को, तेरी नस्ल इनकी तरह होगी। अगर तू गिन सकता है तो गिन ले, जितने ये सितारे हैं ना, तेरी नस्ल इतनी होगी। अच्छा, इसकी उम्र कितनी थी? 100 साल हो गया। इसकी उम्र कितनी है? 75 साल लगा ले, 80 साल लगा ले। जब खुदा ने कलाम किया, नहीं, जब कलाम किया उस वक्त की बात कर, 70-75 साल उम्र थी। 75 साल, इधर मेरी तरफ देखे, मैं इधर बात कर रहा हूँ, इधर 75 साल 80 साल के करीब से जब खुदा ने कलाम किया, बूढ़ा हो चुका था, और जब बच्चा पैदा हुआ ये 100 साल का था। जो सारा थी वो 90 साल की थी। खुदा ने कलाम कर दिया, 25 साल तकरीबन लगे बच्चा पैदा होते हुए। और बाइबल में लिखा है कि जब खुदा ने कलाम किया ना अब्राहम के साथ, तो वो उस बात पर ईमान लाया, वो उस बात पर ईमान, और ये उसके हक में रास्तबाजी शुमार हुआ। क्या शुमार हुआ? एक चंगे काम कर रहे थे, अच्छे कामों से रास्तबाज हुआ। कोई इसने अमल किया तो रास्तबाज हुआ, ईमान से रास्तबाज हुआ। और भाई पलूस अब्राहम की मिसाल देते हुए ये बात करते हैं। अब्राहम की मिसाल सुनाते हुए रोमियो 7 में 8वें बात को पढ़ेगा तो मिलेगा। अब्राहम को एग्जाम्पल बनाकर उसने बात की है। उसने कोई काम नहीं किया, खुदा पर वो ईमान लाया जैसे खुदा पर अब्राहम ईमान लाया था। हमने उसी तरह ईमान लेके आना है। आगे कोई है या नहीं, हम ईमान रखते हैं कि हम आसमान की बादशाही के ऊपर फर्जंद है। हम आसमान की बादशाही में जाएंगे, हम खुदा के साथ उसके तख्त पर बैठेंगे, हम रिश्तों के साथ करेंगे।
क्यों नहीं करेंगे भाई? मैं कामिल शख्स आपके सामने स्टेज पर खड़ा कलाम सुना रहा हूं, अगर मैं कामिल नहीं हूं तो मैं कलाम कैसे सुना सकता हूं? मैं ईमान रखता हूं इस बात पर कि अगर कोई इस वक्त दुनिया में कामिल है तो वो आपके सामने शख्स खड़ा है। करें बात इस तरह से, क्यों? मेरे यीशु ने मुझे कामिल किया है अपने लहू के वसीले। कब ईमान लाना है? मरने के बाद ईमान लेके आना है? आज ईमान लेके आना है। ईमानदारों वाली बोलनी है। लोगों को पता तो चले ना कोई ईमानदार आपके बीच में रहता है, और फिर शैतान को भी पता चले आपके इस इलाके में कोई ईमानदार है। ये क्या, जिस तरह के वो उस तरह के आप, जिस तरह का काहिन उस तरह की कलीसिया, ये क्या है? खातम में फर्क नजर आना चाहिए। कलीसिया की हालत देखिए, इब्तदाई कलीसिया की, शागिर्दों का रोग कलीसिया पर छाकर लोगों पर छा गया, लोगों से डरना शुरू हो गए। आज पादरियों को लोग झुकते कर गए। क्यों? पादरी का कोई म्यार ही नहीं है, खातम का कोई म्यार ही नहीं है। खातम ये कह ही नहीं पा रहा कि मैं कामिल शख्स हूं। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵਾਲਾ मैं भी पढ़ाई क्या है, इस जगह पे आना है, इस जगह पे आना है। यीशु से बढ़कर कोई कुर्बानी नहीं है। और हो ही नहीं सकती। किसका वेट कर रहे हैं और कब हमने ईमान लेके आना? तो पलूस की बात को समझने के लिए आपको हाथ बढ़ना पड़ेगा। यूनुस ने ये कहा कि शरीयत पर ईमान से रात बात ठहरा अब्राहम, उसको एग्जाम्पल बनाकर उसने कहा। और जब यकूब ये कहेगा तो वो दिखाएगा। जब आप चर्च में हो ना, आप सबको पता है हम ईमानदार हैं। मोहल्ले में जब सर्वाइव करना है, मोहल्ले में घूमना ना, लोग आपके काम देखेंगे। अब मोहल्ले में आप कामों से रात बात ठहरेंगे, नहीं तो लोग बातें सुनाएंगे, लोग जो बड़ा गिरजे बड़े रहे तो काम गल किसी नहीं अमल कर। ਕੰਮ ਚਤਾਨਾ ਵਾਲੇ आपने चर्च के अंदर ईमान से रात बात ठहरना है, चर्च के बाहर दुनिया में आपने अपने अमाल से रात बात ठहरना है। लोग आपके ईमान को नहीं देखेंगे, लोग आपके अमल को देखेंगे। तो दोनों बातें समझने वाली हैं। ईमान भी जरूरी है, अमाल भी जरूरी है, और यही अमाल इंसान के साथ साथ होते हैं। मुआशरे के अंदर भी मरने के बाद लोग यही कह रहे होते हैं, बड़ा चंगा बना। किस बात से चंगा था? ये पढ़ना चाहते पढ़े। यकूब 2:14 है जी। ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे मैं ईमानदार हूँ मगर अमल ना करता हो तो क्या? भाइयों, अगर कोई कहे मैं ईमानदार हूँ मगर अमल ना करता अमल हो कोई भी ना, तो क्या फायदा? क्या फायदा है? क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है? हाँ, ये ईमान निजात दे देगा? नहीं। अब राष्ट्रवादी की बात नहीं हो रही, अब हम अगले दर्जे पर है। मैंने कहा कि हम लफ्जों में फंसे हुए। राष्ट्रवाद को हम निजात समझ रहे हैं। राष्ट्रवाद भाई, आप खुदा के कलाम पर ईमान रख रहे हो, आप राष्ट्रवाद हो। आप खुदा की मुश्किल बातों पर ईमान रखते हो, आप राष्ट्रवाद हो। पर निजात को क्या करेंगे? अमल के बगैर इस तक पहुंचना नामुमकिन है। यीशु ये कह रहे थे, जो मैंने पहले कहा था, उस बंदे से कहा तू हुक्मों पर अमल कर। उसने कहा कि मैं कर रहा हूं। उसने कहा एक बात की कमी है, और जिस बात की कमी थी वही हमेशा की जिंदगी में जाने की रुकावट थी। यीशु ने ये थोड़ी कहा था बपतिस्मा लिया तो मैनू मान रहा। यीशु ये कह रहे थे अमल कर, ये तेरे अंदर प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को दूर कर। और आज हम भी पादरी साहब यही कह रहे थे, भाई तेरे में ये गलती, इसको सही कर, तौबा कर अपने गुनाह से। इसकी वजह क्या है? पीछे हुक्म मौजूद है, पीछे हुक्म मौजूद है, और उस हुक्म की वजह से हम कह रहे हैं बेटा ये काम सही नहीं है, बेटी ये काम सही नहीं है, ये गुनाह है, ये गलती है, अपने आप को दुरुस्त कर। और दुरुस्त कैसे होगा? जैसे हुक्म के मुताबिक चलेगा बंदा दुरुस्त है। अब आगे बढ़े, बस इसको रहने देते हैं, ये भी बातें निकल गई है। मैं और एक पॉइंट आपको देना चाहता हूँ। पॉइंट तो ये भी निकल गया, वक्त निकल गया, ज्यादा निकल गया है, मेरे पास और भी बातें मौजूद है, मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। एक बात को समझिए, और बाइबल मुकद्दस के अंदर अहद कितने किए गए, इसको समझिए। बाइबल के अंदर अहद कितने हैं, यहां पर आपके सामने खुदा के मंसूबे की सीढ़ियां, 7 अजीम अहद। हमारे नजदीक 2 अहद हैं,
جس کو ہم پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ کہتے ہیں. میں آپ کو بڑی صفائی کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں یا آپ کی اس بات پر توجہ لے کے آنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی عہد ہیں نا بائبل مقدس کے اندر وہ سارے کے سارے اسرائیل کے ساتھ کیے گئے. سارے عہد اسرائیل کے ساتھ کیے گئے اور پولس نے ایسا کہا. شریعت ان کی، عہود ان کے، وعدے ان کے، بزرگ ان کے، نبی ان کے، یہاں تک کہ مسیح بھی ان کا. اب ہم جو غیر قوم میں سے تھے کہہ رہا ہوں، پیچھے کی بات کر رہا ہوں، ہمارے پاس کیا ہے اس کو لینے. اگر ہم یہ کہتے صرف یہاں تک رہ کے ہم شریعت کو نہیں مانتے تو ایسے ایک فیملی ممبر ہوتے ہوئے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھئی پیدائش سے ملاکی تک تو ہو گیا اسرائیل کے لیے، آگے آئیں گے تو متی کی انجیل جو ہے یہ یہودیوں کے لیے منسوب ہے، یہودیوں کے ساتھ ہے. آگے جو مرکز کی انجیل ہے یہ یونانیوں کے لیے، لوکا کی انجیل اور اعمال کی کتاب یہ روم کے لیے، اعمال کی کتاب روم کے لیے، رومیوں کا خط رومیوں کے لیے، اور باقی جتنے بھی خطوط ہیں سب کے اوپر نام لکھے ہوئے. مکاشفہ کی کتاب 7 کلیسیوں کے لیے. ہمارے لیے کیا ہے؟ ایمان اور عمل. وہ تو پیچھے رہ گئے نا. ابھی تھوڑا ٹریک پہ ہم بدل رہے ہیں. ہم یہ بات کر رہے کہ اس پوری کتاب میں سے اگر ہم یہ کہیں کہ پچھلا حصہ یہودیوں کے لیے تو اگلے حصے میں سے ہمارے لیے کیا ہے؟ معجزے جو متی کے انجیل میں 4 اناجیل میں ہوئے کہاں پر ہوئے؟ اسرائیل کے اندر، یروشلم میں، اسرائیل میں ہوئے نا. شفائیں کن کو ملی؟ اسرائیلیوں کو ملی. یا پھر بعد میں بیچ میں غیر قوم بھی ایڈ ہوئے، لیکن شفا وہ اسرائیل کو دینے کے لیے آئے. اور ساتھ ہی ساتھ میں یسوع مسیح کا بڑا دعویٰ یہ تھا کہ میں اسرائیل کی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں جاتا. یہ بھی یسوع مسیح نے اپنے منہ مبارک سے فرمایا. اب یہاں پر جو ہم پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ساری شریعت یا ملاکی تک تو ہو گئی یہودیوں کے لیے، اور باقی بھی میں نے سارے آپ کو بتا دی، یہ اس کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے. ہمارے لیے اس کے بیچ میں کیا ہے؟ یسوع کو دیکھیں گے تو جب وہ پیدا ہوئے تو لکھا ہے یسوع یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا وہ کہاں ہے؟ لکھا ہے نا جی. کرسمس کے دنوں میں ہم یہ پیغام زیادہ سنتے ہیں، یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں؟ کن کا بادشاہ؟ اچھا جب وہ مرے یسوع مسیح نے جان دی تو صلیب پر کتبہ کیا لکھا ہوا تھا؟ اس میں ہمارا کدھر ہے؟ اس سارے سلسلے میں ہمارا کدھر ہے اور ہمارا ہے کیا؟ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں جو میں نے پہلے شروع میں رکھا تھا، آپ اور میں ابراہیم کی نسل ہوتے ہوئے ایک ہی کلیہ ہے، وہ ایمان ہے. ایمان سے یسوع پر ایمان لانے سے ہم خداوند میں پوتر ہو جاتے ہیں یا ابراہیم میں پوتر ہو جاتے ہیں. اسرائیل کے ساتھ کیے گئے وعدے ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں. ہوتے ہیں نا. خدا کہہ رہا ہے، یشوع سے کہہ رہا ہے، جہاں تیرے پاؤں کا تلوار ٹکے گا وہ جگہ میں. آپ نے کتنے لوگوں کو خاتموں کو سنا؟ خاص وہاں جب چرچ کی اینٹ رکھتے ہیں نا تو وہاں کلام سنائیں گے. خدا نے کہا ہوا ہے جہاں تیرے پاؤں کا تلوار ٹکے گا وہ جگہ کہ تیرو تے بھائی کیا ہی ہے کیا ہے یشوع نہیں ہے. کون سی بات ہے جس کو کھینچ کے ہم اپنے اوپر لے آئے؟ کون سی بات ہے؟ کون سی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے ہم یہ والی بات اپنے اوپر لے لیتے ہیں؟ خدا نے وعدے کیے اسرائیلیوں کے ساتھ. یسوع شاگردوں سے کہہ رہے تھے نا روح القدس تمہیں ملے گا. ہلو کہہ رہے تھے یا نہیں؟ کن کو کہا؟ شاگردوں کو کہا. آج ہم اپنے اوپر لے رہے ہیں. یسوع کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہم کہہ رہے ہیں اس کے شاگرد ہیں. اور جو وعدے شاگردوں کے ساتھ ساری قوموں میں جا کے منادی کرو وہ آج ہم اپنے کو بھی مان رہے ہیں.
جبکہ مجھے تو کہا ہی نہیں گیا، کہا تو شاگردوں کو کیا تھا۔ اس سارے سلسلے میں وہ ایک ایمان ہے جس کی پالوس بات کر۔ ہمارے پاس الگ سے کوئی کتاب نہیں آئی ہے، ہمارے پاس وہی ایمان ہے جو ابراہم کے اندر تھا۔ ابراہم بغیر دیکھے ایمان لے آیا، اور آج ہم بھی بغیر دیکھے ایمان لے کے آئے ہیں۔ یہ ہے وہ پوائنٹ، یہ ہے وہ کلیہ جس کی وجہ سے ہم اسرائیلی بے ایمانی کی وجہ سے کٹ ہو گئے، ہم ایمان کی وجہ سے کمر ہوئے۔ یہ ہے وہ پوائنٹ۔ اب ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم میٹھی میٹھی باتیں تو دے لیتے، کڑوی جب بات کیا تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں۔ روت کی مثال بڑی اچھی ہے۔ روت نے کہا تیرا خداوند میرا خداوند، تیرے لوگ میرے لوگ۔ لیکن ہماری پرابلم کیا ہے؟ ہم یہودیوں کے خدا کو اپنا خدا کہتے ہیں، پر وہ فرق ہے، ہم فرق۔ یہ ہمارے منہ سے نہیں نکلتا کہ وہ اور ہم ایک ہیں۔ پتہ ہے یہ غلاموں کی بولی ہے، یہ بولیے غلاموں کی بولی کیا ہے؟ جیسی ہاجرہ پریگننٹ ہوئی نا تو پہلا کام جو اس نے کیا وہ اپنی بیوی کو نچیز کیا۔ ہاجرہ نے کیا کیا؟ پہلا کام اپنی بیوی کو حقیر جانا، اور اسی بائبل میں لکھا ہے یہ دو الگ الگ دو عہد ہیں۔ غلطیوں کے خط میں لکھا ہے یہ دو کیا ہے؟ عہد ہیں۔ ایک سے غلام پیدا ہوتے ہیں اور وہ اسماعیل ہے، لکھا ہے یا نہیں؟ تو گویا عورتیں دو عہد بن گئی۔ میں نے کہا یہ غلاموں کی سوچ ہے، غلام سے غلام پیدا ہوگا۔ جیسے ہی ہم روح القدس یافتہ ہوں گے یا جیسے ہم خدا میں آئیں گے، پہلا کام جو ہم کریں گے ہم بی بی کو حقیر جانیں گے، اور بی بی اسرائیل۔ بی بی کیا ہے؟ اسرائیل ہے۔ غیر قوموں والی بات ہے، غیر قوموں کی حالت کیا ہے؟ ہم ہو چکے ہیں، ہم نے نجات پا لی ہے، اسرائیل کچھ بھی نہیں ڈالتا۔ وعدے کن کے؟ ان کے۔ عہد کن کے ساتھ؟ ان کے ساتھ۔ سب کچھ ان کے ساتھ، ہمیں تو ان میں پیوند کیا، اور پیوند ہو کر ہم انہیں ہی اپنی جان۔ اگر وعدے ان کا خدا ہمارا خدا ہے نا، ان کے وعدے ہمارے ساتھ وعدے ہیں، ان والا ایمان ہمارا ایمان ہے، ان کی ہزار سالہ بادشاہی ہماری ہے، ان کا یسوع ہمارا ہے، تو پھر ساری بائبل بھی ان والی بھی ہماری ہے۔ یہ حصہ میرا نہیں ہے، یہ حصہ میرا نہیں ہے، وہ حصہ ان کا تو وہ حصہ میرا۔ اگر سارا کچھ ان والا ہم ریسیو کرتے ہیں تو بائبل بھی ساری ہمیں ہی ریسیو کرتے ہیں۔ یہ ساری بائبل ہمارے خدا کا کلام ہے، اور یہ میرے لیے ہے، اور ہم نے اسے ایمان سے قبول کرنا۔ اب جلدی سے یہ آپ کے سامنے 7 وعدے ہیں، یہ 7 عہد ہیں جن کو بڑے عہد کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ بھی بائبل میں عہد ہیں، لیکن یہ وہ خاص عہد ہیں جو خدا نے ایک منصوبہ بنایا نجات کا، اور ان کے اندر پرانے عہد بھی موجود ہے، نیا عہد بھی موجود ہے، داؤد کا عہد موجود ہے، نوح کا عہد موجود ہے، آدم کا عہد موجود ہے، گناہ کے بعد جو عہد ہوا وہ بھی موجود ہے۔ سارے عہد اس کے اندر موجود ہے، اور عہد دینے کا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنے وعدوں میں پکا ہے، وہ انسان کو نجات دے گا ہی دے گا۔ خدا نے جب بھی وعدہ کیا، جب بھی عہد کیا، انسان عہد سے پھرا ہے، خدا عہد سے کبھی نہیں پھرا ہے۔ اب ایک بات سمجھیے، جو ہمارے نزدیک 2 عہد ہیں، پرانا اور نیا، دونوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ متی سے لے کر مکاشفہ تک کوئی نیا عہد نامہ نہیں ہے۔ پرانا عہد نامہ خروج کی کتاب میں 19ویں باب میں لکھا ہوا ہے، اور نیا عہد نامہ استثنا کی کتاب کے 29ویں باب میں لکھا ہوا ہے۔ دونوں عہد نامے شریعت کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں جو موسیٰ کی وسیلہ سے ہوئے۔ پرانا عہد بھی بنی اسرائیل سے کیا گیا، نیا عہد بھی بنی اسرائیل سے کیا گیا، اور یرمیہ اس کا گواہ ہے۔ یرمیہ نے کہا میں نیا عہد تمہارے ساتھ باندھوں، خدا کہہ رہے ہیں۔
اور نیا عہد باندھوں گا، تمہیں نیا دل دوں گا، نئی روح دوں گا، اور اپنے احکام تمہارے دلوں پر لکھوں گا، اور تم سے اپنے آئین اور اپنے احکام کی پیروی کرواؤں گا۔ یہ بنی اسرائیل ہے۔ یاد رکھیے، جو اس نئے عہد کے اندر جو نئے متی سے آگے جو ہے جو یسوع مسیح نے کیا، اس کی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب پرانا عہد کیا گیا نا 19ویں باب میں، تو بزرگ موسیٰ نے بیلوں اور بچڑوں کا خون لیا اور اس عہد کو خون کے وسیلہ سے پکا کر دیا، کیونکہ عہد خون سے باندھا جاتا ہے۔ اب دوسرا عہد جو استثنا کی کتاب میں ہوا، نیا عہد جس کو کہا جاتا ہے، بات تو خدا نے کر دی لیکن اس کو پکا نہیں کیا گیا، کیونکہ پکا کرنے کے لیے درمیان میں کوئی خون چاہیے تھا۔ اور یسوع جب اپنے شاگردوں کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھے تب اس نے کہا یہ اس عہد کا خون ہے جو نیا عہد ہے۔ آمین۔ تو نیا عہد نئے عہد نامے میں کیسے آیا؟ جو استثنا کی کتاب میں تھا اس کو لہو سے باندھا گیا، نئے عہد کے اندر آ کر، یا یسوع نے جب لہو دیا تو نیا عہد مکمل ہو گیا، نیا عہد باندھا گیا، اور ہم اس نئے عہد میں شریک ہیں۔ ہم سب کے سب اس نئے عہد میں شریک ہیں۔ اگر کوئی کہتے اسرائیلی پرانے میں شریک ہے تو وہ تو پہلے سے ٹوٹ چکا تھا، پہلا ٹوٹا تھا تو نیا بنا تھا۔ وہ بھی نئے میں شریک ہے، ہم بھی نئے میں شریک ہیں، اور ایک ہی عہد ہے جو خدا نے کیا ہوا ہے، اور اس عہد کا درمیانی یسوع ہے، جو یسوع کے وسیلہ سے آئے گا۔ وہ اسرائیلیوں میں سے ہو، وہ غیر قوم میں سے ہو، وہ یسوع کے وسیلہ سے نیا مخلوق ہے، وہ یسوع کے وسیلہ سے۔ اور اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے یہاں پہ کہ نہ کوئی یہودی رہا، نہ کوئی یونانی رہا، نہ کوئی مرد رہا، نہ کوئی عورت۔ اس کو سمجھنا، اس بات کو سمجھنا، نہ یہودی رہا، نہ کوئی یونانی رہا، نہ کوئی مرد رہا، نہ کوئی۔ تو ویسے اگر میں یہ کہوں اے لینڈ کتنا دیے، اے والی لینڈ، تو جو پولوس کہہ رہا تھا اس کو کیا کرتے؟ اگر اس کو ایمان سے ناپ لیں نا تو پوری بائبل کو ایمان سے، پولوس کی باتوں کو سمجھ رہے ہیں، ہر بات کا بتنگڑ نہیں بنانا، ہر بات کو سمجھ رہے ہیں، روح میں سمجھنا، کیونکہ ہم لفظوں کے خادم نہیں، ہم روح کے خادم ہیں، اور کلام روح القدس کے وسیلہ سے لکھوایا گیا، اور روح القدس کے وسیلہ سے ہی یہ سمجھ میں آتا ہے۔ یہاں تک کافی ہے جی، پوائنٹ میں تھوڑا چینج کرنا چاہتا ہوں۔ بائبل مقدس کے اندر کہانتیں کتنی ہیں؟ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ بائبل کے اندر کہانتیں کتنی ہیں؟ بہت سارے لوگ اس بات سے غافل ہیں۔ دو کہانتیں دو، آمین، دو کہانتیں ہیں۔ اگر میں کہوں تین کہانتیں، نہیں ماننی نہیں ہے، میں تو آپ کو تھوڑا ہٹانے کی بات کروں، آپ اپنی بات پہ پکے رہے ہیں۔ آمین، دو ہی کہانتیں ہیں۔ میں صرف آپ کو تھوڑا رات سے ادھر کر کے تھوڑا سا ہلانے لگا ہوں۔ اگر میں کہوں تین ہے تو اس کو دیکھیے، پہلی جو کہانت ہے وہ لاوی کی کہانت ہے، پہلی جو کہانت ہے یہ لاوی کی کہانت ہے۔ دوسری جو کہانت ہے وہ ملک صدق کی کہانت ہے۔ بائبل کے اندر پیدائش کی کتاب میں، زبور کی کتاب میں، عبرانیوں کی کتاب میں یہ حوالے موجود ہیں۔ اب جو ہمارے پاس پرابلم ہے نا شریعت کو لے کر، ایک یہاں پر بھی ہے کہ ہم جب بھی کوئی بات آئے گی شریعت کی، فوراً آئے گا قربانیاں کر دے، دوسری قربانیاں کر دے، تو ہمارا جواب ہے جی ہاں ہم کرتے ہیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ جی ہم کرتے ہیں۔ نہیں تو پولوس سے پوچھ لیتے، وہ کہتا ہر روز قربانیاں چڑھاؤ، تو قربانی نہیں آتی۔ میں بچے بکرے کے بچے گئے، میں تو صرف قربانی کی بات کر رہا ہوں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ
अगर कोई हमसे कहे जी कुर्बानी करते हो, तो हम कहेंगे जी करते। और मैं होंठों तक भी कहना नहीं चाहता। रूमियों का बात पढ़िए, वो तो ये कह रहे हैं अपने बदन कुर्बान करो। क्या कहता जी? अपने आप को कुर्बान करो। तो जो नहीं कुर्बानी करता ना, वो पहला सवाल पूछा कुर्बानियां कर दे, तो साडा जवाब है हाँ। अगली गल पूछो कर दे की है, कुर्बानी जी कर दे की है, असि अपने आप को कुर्बान कर की कुर्बान कर रहे हैं, जिन्हें अपना कुर्बान करना ही नहीं। कुर्बान करने के लिए पता आपको जिस्मानी जिंदगी छोड़नी पड़ेगी, अपनी ख्वाहिशात को खत्म करना पड़ेगा। और ये मलकिसिदक की कहानी, मलकिसिदक की कहानी का असूल फर्क है और लावी की कहानी का असूल फर्क है। लावी की कहानी में जितने भी काम थे तुलसियों के खत के मुताबिक वो अक्स के तौर पर थे। हैकल अक्स के तौर पर थी, खैमा इज्तिमा अक्स के तौर पर था, जो हौद था अक्स के तौर पर था, सीढ़ियां अक्स के तौर पर थी, वहां पर कुर्बानगाह अक्स के तौर पर थी, वहां पर पर्दा अक्स के तौर पर था, हैकल के 3 हिस्से अक्स के तौर पर थे, वहां की कुर्बानियां अक्स के तौर पर। अगर कोई ये कहे कि आप वो वाली कुर्बानियां क्यों नहीं करते, तो हम कहेंगे हम उनको मानते ही नहीं। क्यों? उसका जवाब हमारे पास क्या है? हम लावी की कहानत के काहिल नहीं है, हम मलके सिदक की कहानत के काहिल हैं। और ये बहुत बड़ा फर्क है जो मैं आपको दे रहा हूं। मलके सिदक की कहानत के अंदर और लावी की कहानत में जो बहुत बड़ा फर्क था वो ये था कि लावी की कहानत के अंदर जितनी भी कुर्बानियां होती थी वो मज़बा पर होती थी, मज़बा पर, और काहिन उन्हें कुर्बान करता था। और इसी को लेते हुए खालिद रोक भी डालते हैं, जेड़ी भी करनी ना इच्छे ले होनी। नए अहदनामे में ऐसा नहीं है। मैंने पहले कहा ना असि अपने हिसाब नाल जितो को हिसाब नाल तो ना बुला लेंगे, जो साडा काम सीधा ना उधरों ला लेंगे। नए अहद के मुताबिक हर शख्स अपने घर का काहिन होता है। नए अहद के मुताबिक हर शख्स अपने घर का काहिन होता है। और ये काहिन लावी वाला नहीं है, ये मलके सिदक की कहानत का काहिन है। बाइबल में इसकी एग्जांपल देता हूं। लावी की कहानी जब शुरू नहीं हुई थी, उससे पहले अब्राहम ने कुर्बानी कहां पर दी? पहाड़ पर। इतना तो याद है, मुश्किल तो नहीं। कहां पर दी? पहाड़ पर। मज़बा किसने बनाया? अब्राहम ने खुद बनाया। अय्यूब कुर्बानियां कैसे देता? क्या उसके पास कोई काहिन था? क्या कोई हैकल थी? कुछ था उसके पास? कौन कुर्बानियां करता था? कौन कर रहा था? अय्यूब कोई पादरी थी? कोई काहिन था? वो अपने घर का खुद ही काहिन था। यीशु मसीह को देखिए, यीशु मसीह जो सरदार काहिन है, यीशु मसीह जो आप और मैं, हम सब के सब इसको लिख ले अपने अंदर, हम लावी की कहानत के काहिन नहीं। और इस बात को लेते हुए ये समझाया जाता है, ये कहा जाता है कि 3 कहानतें जो मैंने कहा, एक कहानत वो जो लावी की है, एक कहानत वो जो यीशु मसीह की है। वहां पर सरदार काहिन हारून है, यहाँ पर सरदार काहिन यीशु है। और इसको लेकर कुछ लोग ये कहते हैं कि जो गैर कौमों में से जो काहिन आ रहे हैं, ये तीसरी कहानत के लोग, जबकि ऐसा नहीं है। कहानतें 2 ही हैं और हम सब दूसरी कहानत के अंदर, यानी कि मलके सिदक की कहानत कर रहे हैं। और ये बात पलूस रसूल ने कही कि जब शरीयत बदली है या कहानत बदली है, तो शरीयत का बदलना भी जरूरी है। जब कहानत बदली तो शरीयत भी बदलेगी। अब पुरानी शरीयत में जो कुछ भी हो रहा था वो अक्स के तौर पर हो रहा था। नई शरीयत में जो कुछ भी होगा वो तकमील के अंदर होगा। आमीन करेंगे? मैंने क्या बोला?
मुझे लग रहा है कि मैं खुद से बातें कर रहा हूँ। नहीं सरकार सुन रहे हैं, बिल्कुल बोल रहे हैं, थोड़ा थोड़ी सी बात है तो सरकार खोल कर सुन रहे हैं। हालेलुया 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 भी ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा साथ भी, थोड़ा साथ भी रहे। मैंने क्या बोला आपको? दो ही कहावतें हैं। दो ही कहावतें। लावी की कहावत में सारी चीजें अक्स के तौर पर चल रही है। मलकीसिदक की कहावत के अंदर सारी चीजें तकमील में चल रही है। आमीन करेंगे? यही वो पॉइंट है जहां पर हम ये कहते हैं कि हम शरीयत को मानते। क्यों? क्योंकि जब कहानत बदली है तो शरीयत भी बदलती है। बाइबल खत्म नहीं हुई, साए से तकमील में आएगी, साए से तकमील की तरफ जाएगी। जो बातें हमने पीछे की, कुर्बानी क्या करते हो, मैंने क्या कहा? हम करते हैं। कुर्बानी करते हो, हम कहते हैं हम करते हैं। अब नए नामे के अंदर मैंने और आपने इसको वर्ग के तौर पर लेना है चीजों को समझने के लिए। मिसाल देता हूं, पुराने अहदनामा के अंदर हम ये पढ़ते कि बनी इस्राएल के लोग यहाँ पे किब्बा टोपी पहनते हैं, हम यहाँ पे नहीं पहनते। हम यहाँ पे क्यों? इसका जवाब क्या है? अच्छी कड़े शरीयत मान गए, ये इसका जवाब नहीं है। ये इसका जवाब नहीं है। याद रखिए, सर ढांकने के बारे में बाइबल में तालीम है। और सर ढांकना, यहाँ पे कपड़ा ही खाली रख लेना काफी नहीं है कि कोई बंदा यहाँ पे टोपी रख ले तो काफी है। हमारे ऊपर जो हमारा हेड है वो यीशु है। हमारा हेड जो है, उनको सिर्फ टोपी रखनी थी, हमें हर वक्त यीशु को रखना है। आमीन करेंगे? वो क्या कर रहे थे? सर पे सिर्फ टोपी, और टोपी किस बात की अलामत है? ताबे रहने की। हमने किसके ताबे रहना है? पूछे अपने आप से, नई कहानत के अंदर यीशु के ताबे हैं। अब वहां पर वो जिस्म का खतना करवाते हैं। नया नामा में भी कोई खतना है? दिल का खतना, वो तो पुराने अहदनामे में नहीं सर, नवे आना नहीं चलो पत्रिका चलो लिखा हुआ है ना। हिजकिय्याह की किताब में भी पढ़े, हम नबियों को पढ़े ना, वो कहते हैं कानों और दिल का खतना कराओ। अमाल की किताब में पढ़े, स्टिफनस यही कह रहा था, दिल और कान के नाम सुनो। तुम हर वक्त बाप दादा की तरह मुखालफत करते रहते हो। किनको कह रहा था? यहूदियों को कह रहा था। और पुराने अहदनामे में लिखा है दिल का खतना कराओ, कानों का खतना कराओ। हम सिर्फ एक ही खतने को लेके बैठे, या तो कानों का भी खतना है, दिल का भी खतना है, जुबान का, होंठों का भी खतना है, और वो भी खतना जो अब्राहम को दिया गया। हम एक भी फंसे हुए, हम इनसे भी कहीं आगे हैं। मलकीसिदक की कहानत में सिर्फ कानों का, जुबान का नहीं होता, यहां से लेके जिस्म के पूरे जिस्म की खलड़ी उतरती है। तौबा करने से पुरानी इंसानियत ऊपर से नीचे तक खलड़ी पूरी की पूरी उतर जाती। ये नया अहद है। यहां कानों और दिल तक बात नहीं है, यहां पूरी की पूरी खलड़ी उतरने की बात। पूछे अपने आप से, पूरी खलड़ी उतरवा ली या अभी तक कोई शरीयत की बात है? दिल का खतना करा लो, ते करना दा करा लो, ते होता दा करा लो, विचो करा लो, ते बाकी पाबंदी कर दो। यहाँ विचो नहीं, यहाँ सारे का सारा ही चेंज होना पड़ता है, और सारे का सारा खुदा का होना पड़ता है। फर्क आ रहा है? फर्क आ रहा है? मलकीसिदक की कहानत में पूरी की पूरी खलड़ी का, और वहां पर क्या था? जूतियां उनकी फर्क थी, यहाँ पर हमारी जूतियां फर्क। उनके पास ना जिस्मानी जूतियां, हमारे पास खुशखबरी की जूतियां है या नहीं? उनके पास कमरबंद जिस्मानी है, हमारे पास सच्चाई कमरबंद। उनके पास हाथ में लाठी है, हमारे पास खुदा का कलाम या इख्तियार है। ये नया अहद है। हेलो, इस पत्र में आ चुके हो? ये हो चुका है? थोड़ा
आवाज नहीं आ रही। मैंने क्या बोला है? पाँव में सुना कि खुशखबरी की जूती आ गई है, हाँ? तलवार हाथ में आ गई है, यीशु ऊपर आ गए, खतना हो गया और कुर्बानी के लिए अपना आप कुर्बान कर दिया। मलकीसेदक की सबसे खूबसूरत बातों में से सबसे बड़ी बात, मलकीसेदक की कहानी के अंदर यीशु खुद ही हैकल था। आज हम खुद ही हैकल हैं या नहीं? हम खुद ही हैकल हैं। तुम खुदा का मक़दस हो, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। वहां पर हैकल में खुदा का रूह रहता था, आज हमारे अंदर रहता है। पूछे अपने आप से है या नहीं? अगर हो गया, खुदा का रूह आ गया तो आप फजल में हैं। आप पर फजल हो चुका है, आप पर फजल हो चुका। अगर खुदा आप में रहता है तो, अगर नहीं है तो कोई फजल नहीं। सुनी सुनाई बातें। मैंने कहा सबसे बड़ी बात कि हैकल यीशु खुद था, आज हैकल हम खुद हैं। वैसे यीशु बर्रा था, हम भी हैं या नहीं? यीशु को किसने कुर्बान किया? यीशु ने खुद अपनी जान दी है। यीशु ने, मैंने भी खुद अपनी जान देनी है। मैंने खुद अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश करना है। यीशु खुद ही अपनी कुर्बानी का सरदार कायम था और खुद ही अपना खून लेकर आसमान में पहुंचा। मैंने और आपने भी अपने आप को कुर्बान करके खुद अपना खून लेकर आसमान में बाप तक पहुंचना है। ये मलकीसेदक की कहानी है मेरे भाइयों, जिसमें हम शरीयत को मानते हैं, जिसमें हम खुदा के कलाम को मानते हैं, जो पाकीज़गी से बना हुआ है, जो लफ्जों के खादिम नहीं है, जो रूह से बने हुए खादिम है, जो रूह के मुताबिक चलते हैं। और गलतियों के खत 5वें बाब में लिखा है, अगर तुम रूह के मुआफिक चलोगे, अगर तुम, तो कोई शरीयत तुम्हारे खिलाफ नहीं। चलो ना रूह के मुताबिक। मैं देखता हूं आपको कौन सा हुक्म रोकता है, कोई भी नहीं। एक बात पीछे रह गई थी, 613 है काम पर, पॉइंट मिस हो गया था। जब मैंने कहा 613 है काम, 10 हो गए, 10 में से फिर उन 10 को 1 किया गया, यानी कि 2 को 1 मिलाया गया, फिर 1 को मोहब्बत के साथ जोड़ दिया गया। अब मुश्किल लगता है ये समझना कि सारे मैं कैसे मान सकता हूं। तो मैं आपको फाइनल करना चाहता हूं यहां पे भी कि 613 है काम मैंने अकेले ने थोड़ी मानते 613 मेरे लिए लागू। इसमें औरतों के हुक्म अलग है, इन वाले अलग है, इनके अलग है, बाप के अलग है, बेटों के अलग है, बेटियों के अलग है, सरदार कायन के अलग है, काहिनों के अलग है, सरदार कायन के अलग है, किसान के अलग है, बीज बोने के अलग है, जानवरों के अलग है। तो मेरे ऊपर सारे थोड़ी लागू होते हैं। 613 तो मेरे ऊपर लागू होते ही नहीं, घबराना किस बात से? वो ढूंढे अपने लिए जो आप पर लागू हो। अमल करें तो मुश्किल नहीं है। मैंने कहा जब आप और मैं नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, रूल को तो हासिल कर लेते हैं, फिर एक हुक्म मानना भी मुश्किल नहीं होता। ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। खुदा का कोई हुक्म सख्त नहीं है। जब मोहब्बत होती है, किसी से बंदा मोहब्बत करता है, फिर मोहब्बत में सब कुछ करता है। और शरीयत की तकमील इसी एक लफ्ज के अंदर है। जब हम अपने खुदा से मोहब्बत करेंगे ना, हम अपने खुदा के लिए एक बात मानना, क्या हम अपने खुदा के लिए जान तक देने के लिए तैयार। सो इस बात को अपनी जिंदगी में लीजिए। थोड़ी सी बातें और करेंगे 2 घरानों के बारे में। जैसे मैंने कहा था, ये बात बीच में मैं पीछे कर चुका हूं, लेकिन इसको फिर से थोड़ा सा ऐड करते हैं। 2 घरानों की तालीम के बारे में। यहाँ पर 2-3 लोग हैं जिनको इसके बारे में इल्म नहीं है कि 2 घरानों की तालीम क्या है। 2 घरानों की मतलब इस्राएल के 12 कबीले और 12 कबीलों को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। और तकसीम करने के लिए एक को यहूदा का घराना कह दिया जाता है और एक को इस्राएल का घराना कहा जाता है। इस्राएल के अंदर 10 कबीले हैं और यहूदा के अंदर 2 कबीले हैं। अच्छा, 2 के साथ कुछ लावी भी इनके साथ थे, 4 लोग लावियों के भी इनके साथ थे जो इनको इबादत करवाते थे। अब इनमें फर्क यह है कि जो 2 कबीले रह गए, इनके पास जो लावी थे ये हैकल में दुआ करवाया करते थे, और जो 10 कबीले थे
इनके ऊपर एक नौकर हाकिम बन गया। इनका जो बादशाह बना वो सुलेमान का नौकर था। खुदा ने नौकर को बादशाही दे दी। क्यों? क्योंकि जो कुछ सुलेमान ने किया और फिर उसके बेटे ने किया, प्रॉब्लम हो गई। खुदा राजी ना रहा। और सुलेमान के बारे में लिखा है कि जब वो बूढ़ा हुआ तो उसका दिल खुदा से फिर गया। फिर प्रॉब्लम हो गई। खुदा ने बादशाही दो हिस्सों में तकसीम कर दी। अब जो दो कबीले थे ये बाबुल की गुलामी में जाते 70 साल। 70 साल के बाद ये फिर से वापस आए और 10 कबीले जो तिग्लत-पिलेसर एक बादशाह गुजरा, सलातीन की किताब में मौजूद है, उसके वसीला से इनको पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन तितर-बितर कर दिया। तिग्लत-पिलेसर और भी इसमें लोग मौजूद हैं, लेकिन ये भी बादशाह में मौजूद है। इनके वसीला से पूरी दुनिया के अंदर इनको तितर-बितर कर दिया गया। और इसी को लेते हुए बनी इस्राएल कौम दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। एक हिस्सा वहां पे रह गया, एक हिस्सा पूरी दुनिया में तितर-बितर हो गया। देखने में तो ये लग रहा था कि ये गुनाहों की सजा है, लेकिन खुदा की हिकमत इसके बहुत पीछे है। जो खुदा का एक अपना प्लान था, क्योंकि खुशखबरी के वसीला से गैर कौमों को इसमें शामिल करना था। 10 कबीले खुदावन ने पूरी दुनिया में भेज दिए। 10 कबीलों के लिए मैसेज फर्क आया और खास होशिया की किताब है, ये 10 कबीलों के लिए है। और भी कुछ बातें, मतलब नबियों की बातें जो बड़ी खास 10 कबीलों के लिए थी। और इनको कहा गया कि खुदा तुम्हें तितर-बितर कर देगा। और फिर ये भी कहा गया कि खुदा तुम्हें वापिस लेके आएगा। फिर ये भी कहा गया खुदा चीटी बजाकर फराहम करेगा। और ये वादे थे सारे इस्राएल के साथ, 10 कबीलों के साथ। और इस 10 कबीलों के बारे में यीशु ने कहा था कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी के पास नहीं भेजा। अब इसके लिए एक नबूवत बहुत पहले बुजुर्ग याकूब के वसीला से करवाई गई। 50 में बात के अंदर यहूदा को अलग तरह से बरकत दी गई और यूसुफ को अलग तरह से बरकत दी गई। इसको हम ये कहते हैं दो तरह का मसाया, या मसाया के दो पहलू। मसीह की दो सूरतें, मसीह की दो आमदें। एक आमद उसकी यहूदा के बब्बर की है और दूसरी आमद उसकी चुपान की है। यूसुफ की ब्लेसिंग देखेंगे तो याकूब ने यूसुफ को कहा था कि चुपान यहां से निकलेगा। चुपान यीशु है, वो यूसुफ से निकलेगा। और जो यहूदा का कबीले का बब्बर है, यीशु यहूदा के कबीला में से निकलेगा। मसीह एक है, आमदें दो तरह की हैं। और ये कंफ्यूजन थी जो बनी इस्राएल के अंदर थी कि वो ढूंढ रहे थे कि हमारा बादशाह आने वाला है, क्योंकि यहूदियों से बादशाह पैदा हो रहे हैं। पर यीशु आकर ये कह रहे थे अच्छा चलो मैं हूं। ढूंढ क्या रहे थे? मेरे पास हवाले मौजूद है, देख चुके, वक्त नहीं है कि मैं इसको बाद में कोई भी इसका प्रिंट सारी कर दे सकता। याकूब कह रहे थे कि बर्रा आएगा, सॉरी बब्बर आएगा, शेर आएगा। और बनी इस्राएल पर दिल लगा के बैठे थे, शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, हमारा बादशाह आ रहा है। लेकिन उनको दूसरी बात समझ में ना आ सकी और वो बर्रा बन गया, वो चुपान बन गया। क्योंकि मसीह एक ही था, पर आमदें दो तरह की थी। अब यही एक पॉइंट मैं आपको कहना चाहता हूं, ये उनकी गलती थी जो उसे पहचान न सके। और गलती डायरेक्ट उनकी ये नहीं थी कि पहचान नहीं सके, नबूवत की वजह से गलती कि जिस वक्त में नबूवत को समझना था वो उस वक्त में ना समझ पाए। और मसीहियों के अंदर भी यही गलती है कि जैसे वो बब्बर ढूंढ रहे थे ना, तो उनको बर्रा मिल गया। मसीही भी आने वाली आमद में उसे बर्रे के तौर पर देखना चाहते, लेकिन तब वो बब्बर के रूप में आने वाला, तब वो बादशाह के रूप में आने वाला। वक्त को पहचाने मेरे अजीजों, ये वो वक्त है जिसमें वो बर्रे की आमद में चल रहा है। आप इंतजार कर रहे कि वो आने वाला है, तो आने वाला तो फाड़ खाने को है। शेर बब्बर
कर्जा है, अब कौन न डरेगा? अब तो वो लोग के हिसाब से हुकूमत करने को आएगा। अगर आज उसे नहीं पहचाना तो इसराइलियों की तरह गलती खा जाएंगे। आज वो वक्त है कि हम उसे बर्रे के रूप में स्वीकार कर लें। आज वो फजल के तख्त पर है, उसे मान ले। आज वो हमारी गलतियों को माफ कर देता है, मान ले। उसके बब्बर से आप बर्रे से बब्बर बनने का इंतजार न करें। जब वो बब्बर बन कर आएगा, वो मुखालफों को फाड़ डाले, शरीरों को वो खत्म कर दे। तो मैंने और आपने इस बात को अपनी जिंदगी में लेना है कि मैंने और आपने उसको अपने अंदर रखना है। यहाँ तक हमने इस बात को देख लिया। कुछ बातें मैं आखिर में कहना चाहता हूँ, उसके बाद हम इस प्रोग्राम को बंद करेंगे। वो बातें जो ईदों के हिसाब से है। सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये लिखा हुआ है कि यहूदा से आसा कभी न टूटेगा जब तक के शलवा ना आ जाए। शलो जो लफ्ज है, शलवा शलो लफ्ज है, शलो मतलब जिसका हक है, जिसका हक है। बादशाही किसकी है? अब देखिए और चले आपके कहने से बात करता हूँ। थैंक यू सर। फरिश्ता आया, एक पैगाम दिया, और पैगाम क्या था? किसी को याद है जी फरिश्ते ने आके पैगाम क्या दिया था? वो बुजुर्ग हो और आगे बोलिए बोलिए। खुदा ताला का बुजुर्ग भी हुआ। जब यूहन्ना ने देखा वो बुजुर्गी था, बाल उसके सफेद हो गए थे, बुजुर्ग भी हुआ। और दूसरी बात, खुदा का वो बेटा भी हुआ। अगली बात क्या है? यहां शायद आपकी त्वचा कभी ना गई, पढ़ेंगे तो त्वचा जाएगी। लिखा और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। क्या मिल गया उसे? मिल गया? कोई भी नहीं। ये वो नबूवत है जो अभी तक बाकी है, क्योंकि वो दो रूप में आना है उसने, बर्रे के रूप में और बब्बर के रूप में। बर्रे के रूप में वो यूसुफ की तरह, उसको यूसुफ बिन मसाया भी कहा जाता है, मसाया बिन यूसुफ भी कहा जाता है, मसाया बिन दाऊद भी कहा जाता है। दाऊद का बेटा मसीह, यूसुफ का बेटा मसीह, या फिर सफरी मसाया भी कहा जाता है। जैसे यूसुफ ने दुखों में सफर किया, मसीह दुखों में सफर करेगा। यूसुफ को देखिए, यीशु को देखिए, आपको सिमिलैरिटी नजर आएगी। बहुत सारी बातें आपको मिलेंगी कि यूसुफ में यीशु मौजूद है। और इसके साथ आप दाऊद को देखिए। आपको पता है यीशु मसीह दाऊद के बारे में लिखा हुआ है कि दाऊद मेरे दिल के, इसकी क्या वजह थी? दाऊद में ऐसी क्या खूबी थी? यूं तो बहुत खूबियां थी, लेकिन मैं एक दो आपको बताना चाहता हूँ। पहली खूबी तो यह थी कि जो पीछे इस्रा की किताब में हरामजादों के बारे में शरह लिखी हुई थी कि कोई 10वीं पुश्त तक कोई हरामजादा खुदा की बादशाह में नहीं जा सकता, इसलिए साउल पहला बादशाह बना दिया गया। और वो भी वादे के मुताबिक नहीं था, क्योंकि बादशाही यहूदा से आनी थी और साउल को बिन्यामीन के कबीला से दे दिया गया, ले लो इसको, काम चलाओ। दाऊद को जब ये कहा गया ना कि दाऊद मेरे दिल के मुआफिक है, तो पहली बात के 10 पुश्तें पूरी हो चुकी थी यसी तक, और दाऊद 11वीं पुश्त के अंदर था। इसके मुताबिक ये दाऊद जो था वो खुदा के दिल के मुआफिक था। एक बात। दूसरी बात, दाऊद के अंदर मसीह का रूह था, और जो दाऊद कर रहा था वो मसीह ने करना था। मिसाल, जो दाऊद ने एक बहुत बड़ा काम किया वो ये था, एक शेर है, उसके मुंह में भेड़ है, और दाऊद लड़ाई करता है। दाऊद की जगह पे यीशु को रखिए, भेड़ की जगह पे अपने आप को रखिए, शेर की जगह पे शैतान को रखिए। अगर ऐसे ना समझ में आए तो यहाँ पे दाऊद की जगह पे यीशु को रखिए, भेड़ की जगह पे आदम को रखिए, और शेर की जगह पे इब्लीस को रखिए। जैसे दाऊद ने शेर के मुंह से भेड़ को निकाल लिया और जिंदा ही निकाल लिया, ये काम मेरे यीशु ने किया कि उसने आदम को शेर के मुंह से जिंदा निकाला। आमीन। तो ये दाऊद दिल के मुआफिक है। अब इसी मुताबिक से दाऊद को और यीशु को दाऊद का बेटा भी कहा गया। मत्ती की इंजील शुरू यहां से होती है, इब्ने दाऊद,
ابن ابراہم یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے ابراہم کا بیٹا داؤد کا بیٹا. جبکہ یسوع مسیح آگے جا کر کچھ اور ان کے بارے میں بتا دیں گے کہ یسوع اگر وہ داؤد کا بیٹا تو اسے خدا مخلوق کہتا ہی ہے. ایک اور فرق بات ہے لیکن کہا جا رہا ہے کیونکہ نبوت کے مطابق اسے داؤد کی نسل سے آنا تھا اور اپنے باپ داؤد کے تخت پر بیٹھنا تھا. اور یہ ہوگا 1000 سالہ بادشاہی کے اندر. جو یعقوب نے کہا تھا شلو بادشاہی یہودا سے تب تک نہیں چھوٹے گی جب تک شلو نہیں آئے گا. اس وقت تک یہودا بادشاہی کرے گا اور جب جس کا حق ہے یعنی کہ یسوع کا حق ہے جب وہ تخت پر آ کے بیٹھ جائے گا یہودا سے بادشاہی ختم ہو جائے گی. جس کا حق ہے وہ آ کر اپنے تخت پر بیٹھ جائے گا. آمین. ایک بات میں یہاں سے کرنا چاہتا ہوں اتنی لمبی گفتگو کے بعد. پہلی آمد میں جب وہ آئے تو بڑے سارے مخالف تھے جنہوں نے وہ تخت اسے حاصل کرنے نہ دیا. یہاں پر اپنے دل پر نگاہ کر کے دیکھیں یہ بھی خدا کا تخت ہے. کیا یہودا کے قبیلے کا ببر اس دل کے تخت پر تخت نشین ہے یا پھر مخالفت میں اسے یہاں تک پہنچنے نہیں دیا ہے؟ یہ ضرور آپ نے پوچھ لیں. آخری باتوں کی طرف چلتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بنی اسرائیل کے اندر جو 7 عیدیں خدا نے دی چونکہ ہم ان عیدوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں. پیچھے میں آپ کو پہلے سے کنفرم کر چکا ہوں بتا چکا ہوں کہ ہم جو مانتے ہیں وہ ملک صدق کی کہانت اندر عیدوں کو مانتے ہیں. یہاں پر چھوٹا چھوٹا نظر آ رہا ہے اگر بعد میں دیکھنا تو دیکھ سکتے ہیں. ہم جو مانتے ہیں بائبل مقدس میں سے عکس اور تکبیر کے حساب پہلی عید جو بنی اسرائیل قوم کو ملی وہ عید فصح تھا. بنی اسرائیل کو پہلی عید جو ملی اچھا یہ بھی سوری معذرت کے ساتھ پہلی عید نہیں ہے. جو 7 عیدیں ہیں ان میں پہلی ہے لیکن اگر آپ عیدوں کی سٹڈی کریں گے نا تو ان 7 عیدوں سے پہلے بھی ایک عید ہے اور وہ ہفتہ وار عید ہے جس کو سبت کہا جاتا ہے. ہر ہفتے بعد آتی ہے. ہر ہفتے میں خدا اپنے لوگوں سے ملاقات کرتا ہے اور ان عیدوں کا مطلب ہی خدا کے ساتھ ملاقات کرنا ہے خدا کے حضور شکرانے پیش کرنے خدا کے ساتھ وقت گزارنا ہے. ہم ہر ہفتے میں تو اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. فصح کی بات کرتا ہوں کہ بائبل مقدس کے اندر اچھا اس کو معافی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اس کو تنقید کے طور پر نہیں لینا ہے کہ میں کسی پر کوئی تنقید کرنے جا رہا ہوں. میں آپ کو بائبل کی بات سمجھانے کے لیے بتانے کو جا رہا ہوں تنقید کے طور پر نہیں کہ ہم ایک فیملی کے طور پر ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. بائبل مقدس میں پڑھے تو متی کی انجیل میں لوکا کی انجیل میں یوحنا کی انجیل میں جب یسوع مسیح پکڑوائے گئے نا تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے. آپ بلکہ پاؤں دھونے سے پہلے شاگردوں کو کہا میرے لیے فصح تیار. فصح کو ہم نے پڑھا ہوا ہے بائبل سے. فصح کو ہم نے دیکھا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ فصح منائی. آمین. اور فصح کے اندر کیا ہوا یسوع مسیح نے اپنے شاگرد جس کو ہم آج کے زمانے میں پاک جمعرات کے نام سے جانتے ہیں اس میں ہم اس کو یاد کرتے ہوئے پاؤں بھی دھوتے ہیں اور یسوع مسیح کی قربانی کو یاد بھی کرتے ہیں. لیکن بائبل مقدس کے اندر پاک جمعرات کی کوئی تعلیم نہیں ہے. بائبل مقدس کے اندر عید فصح کی تعلیم ہے. اس کو بڑے دھیان سے سمجھیے. یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے نا تو یسوع نے اپنے شاگردوں کو کہا جاؤ میرے لیے فصح تیار کرو. شاگردوں نے فصح تیار کی اور فصح کھانے سے پہلے یسوع نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے. آپ جب پاؤں دھوئے تو لکھا ہے یسوع مسیح فصح کھانے کے بعد گیت گا کر زیتون کے پہاڑ پر چلے گئے. اب صبح جو تھا وہ دن فصح کا دن تھا اور وہ فصح کا برنا بن کر ہی آئے تھے تو صبح وہ قربان صلیب پر چلے گئے قربان ہو گئے اور قربان ہو کر انہوں نے انسانیت کے لیے کفارہ. یہ تو ہم سب کا ایمان. لفظوں کا تھوڑا آگے پیچھے ہو سکتا ہے یہ جو میں جمعرات کا جمعے کا کہہ رہا ہوں اس کا تھوڑا آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن اندر کہانی سٹوری بائبل کی سیم ایک ہی ہے. فصح والے دن یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھایا کوہ کلوری پر گئے ہمارے لیے قربان ہوئے اور ہمیں نجات گناہ سے نجات دے دی. اس لیے ہم جب بھی فصح مناتے ہیں اس میں فرق کیا ہے. بنی اسرائیل جب فصح منا رہے تھے
تو آج بھی جب وہ فصح منائیں گے تو وہاں پہ وہ کڑوی ساگ بات بھی رکھیں گے، وہاں پر انڈے بھی رکھیں گے، وہ وہاں پر ہڈی بھی رکھیں گے، وہاں پر چراغ بھی جلائیں گے، موم بتی کینڈل وغیرہ بھی جلائیں گے، وہاں پر روٹیاں بھی رکھیں گے، کچھ نہ کچھ وہ اپنے حساب سے کرتے ہیں، جوتی پہن کے اور بھی باقی باتیں عکس کے طور پر آج تک وہ کرتے ہیں۔ لیکن ہم جو یہاں پہ کر رہے ہیں، ہم یسوع مسیح کی فصح کو تکمیل کے طور پر مانتے ہیں۔ اگر وہ جسمانی عکس کو آج تک نہیں بھولے تو ہمارے لیے تو خدا کا برا قربان ہوا ہے، ہم کیسے بھول سکتے ہیں اس کی فصح کو؟ اور پھر کرنتھیوں کے خط میں پولس بھائی نے یہی کہا تھا، آؤ ہم بھی کریں، کیونکہ ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا ہے۔ تو گویا اس برے سے وہ جو جسمانی تھا اس کی جگہ پر روحانی برا یسوع آیا اور وہ ہمارے لیے قربان ہوا۔ وہاں پر اس کا خون چوکٹوں پر لگا، جس نے لگایا بچ گیا، یہاں جس نے یسوع کے لہو کو لے لیا وہ بچ گیا۔ اس لیے ہم فصح مناتے ہیں، اور ان 7 عیدوں میں یہی 7 نبوتیں ہیں، اور یہ ساری کی ساری یسوع میں ہی پوری ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی ان کو پورا نہیں کر سکتا۔ دوسری بنی اسرائیل قوم کو جو ملی، جس رات وہ قربان ہوں گے یا جس دن میں قربان ہوں گے، جو اگلی رات آئے گی یسوع قبر کے اندر چلے جائیں گے، اور وہاں سے ایک میری روٹیوں کی عید سٹارٹ ہوگی، اور وہاں سے 7 دن تک ایک میری روٹیوں کی عید منائی جائے گی، اور 7 دنوں کے اندر جو اتوار آئے گا، اس اتوار میں جو صبح کا وقت ہوگا، اس میں پہلے پھلوں کی عید بنی اسرائیل قوم منائے گی، پہلا خدا کے حضور پیش کرے۔ اب ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم کیسے ان کو دیکھتے ہیں؟ ملکہ صدر کی کہانی کے اندر یسوع قربان ہوئے، پوری دنیا کا خمیر، پوری دنیا کا گناہ وہ قبر میں لے گئے، اور قبر میں لے کر انہوں نے پوری انسانیت کو بے خمیر کر دیا۔ اب پوری دنیا کا گناہ ختم ہو چکا ہے، انسانیت بے گناہ ہو چکی ہے، بے خمیر ہو چکی ہے، اب انسانوں کے اندر کوئی گناہ نہیں رہا۔ میں آپ کو خوشی کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب مذبح کے سینگوں پر کہن خون ڈلتا تھا نا، تو وہ خون پھر سے سوکھ جاتا، پھر سے قربانی دینی پڑتی تھی۔ لیکن یسوع کے خون کی کوالٹی یہ ہے کہ یسوع نے جو آسمانی ہیکل ہے اس کے سینگوں پر اپنا لہو جب ڈالا تو آج تک وہ سوکھا نہیں ہے۔ خدا جب بھی دیکھتا ہے مجھے اور آپ کو، اپنے بیٹے کے لہو میں سے دیکھتا ہے، اپنے بیٹے کے۔ ایک اور بات آپ کو دینا چاہتا ہوں، شریعت کے بارے میں لکھا ہے، ہمیں شریعت کی لعنت سے آزاد کیا۔ یہ بات بھی بہت سارے لوگوں کو ڈسٹرب کرتی ہے کہ شریعت کی لعنت سے ہم چھوٹ گئے۔ اچھا، یہ تو بیوقوفی کا بہت اتم لیول ہے کہ کوئی یہ کہے کہ شریعت لعنت ہے۔ بیوقوفی کا بہت اوپر والے درجے کا کوئی بیوقوف ہے جو یہ کہے گا کہ شریعت لعنت ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، شریعت کے اندر 2 باتیں لکھی ہیں۔ شریعت اگر مانو گے تو برکت ملے گی، اگر نہیں مانو گے تو لعنت ملے گی۔ میں نے پیچھے بھی کہا تھا، شریعت نجات پانے کے لیے نہیں ہے، شریعت برکت پانے کے لیے دی گئی ہے۔ اور آج بھی جو شخص خدا کے حکموں پر عمل کرتا ہے نا، شریعت پر عمل کرتا ہے، صرف وہی بابرکت ہے، اس کے علاوہ کوئی بابرکت نہیں۔ آج حکموں پر عمل کرنا شروع کریں، آپ کے گھر میں برکت آ جائے، آپ نافرمانی کریں، لعنت ڈیرے ڈال دیں۔ تو حکم جو ہے وہ بابرکت بناتے ہیں، اور یہ سمجھنا ہے، لکھا ہوا ہے حکموں کی وہ دستاویز جو ہمارے نام پر تھی اور ہمارے خلاف تھی۔ 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ کیا برکت ہمارے خلاف تھی؟ آج ہر بندہ برکت لینا چاہتا ہے اور جھوٹی تسلی دے رہے ہیں، گیت گاؤ برکت ملے گی۔ اور گیت گانے سے کب برکت ملے گی؟ اور گیت برکت پانے کے لیے ہوتے ہی نہیں، اور برکت پانے کے لیے خدا کے حکموں پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ گیت تو خدا کی حمد و ثنا کے لیے ہوتے ہیں، گیت خدا کی تعریف کے لیے ہوتے ہیں، خدا کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور جب خدا کسی سے راضی ہو جائے تو وہ مہربان ہو جاتا ہے۔
हुक्मों पर अमल करने से कोई बंदा बाबरकत होता। तो लिखे जो हुक्मों की दस्तावेज हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, उनको उसने सलीब पर कीलों से जड़ा और उनका बरगला तमाशा बना। आमीन। अब देखिए ये गोल्ड रिंग को देखिए, यहां से खुदा है, वो मज़बा है, गोल्ड रिंग जो है इसके चारों तरफ में लहू लगा हुआ है। हुक्मों की वो दस्तावेज हमारे ऊपर से हट गई। हुक्मों की जो हमारे खिलाफ थी, खिलाफ क्या था? अगर हुक्म नहीं मानोगे तो लानती, हुक्म नहीं मानोगे तो एक बार बोलो, मजा आने वाला। हुक्म नहीं मानोगे तो, हुक्म नहीं मानोगे तो यीशु के लहू का क्या फायदा हुआ? जितनी भी लानतें थी सारी उसने क्या किया? कीलों पर, कीलों के साथ क्या दी? सामने से हटा दी। अगर आज कोई हुक्म नहीं मान रहा, इसको फजल कहते हैं, आप लानती नहीं होते। आजाद है। यही मैं कह रहा हूं। अगर हमसे हुक्मों में भूल चूक हो जाती है, किसी जगह पर हमसे खुदाई हो जाती है, खुदा दरगुजर करता है और अपने बेटे के लहू में से हमें देखता है। और गज़ल की किताब को पढ़ के देखिए, वो कहता है तू बेऐब है, तू। मैं आपको दावत देना चाहता हूं, यीशु की आंखें अपने अंदर ले लीजिए, उसकी आंखों से देखिए, आपको सारे शहजादे नजर आएंगे, सारे आपको बेऐब नजर आएंगे। अगर वो गुनाह नजर आए किसी के अंदर, देखना शैतान इस पे काम कर रहा है, ये बेऐब है पर शैतान इसको भड़काना चाहता है। ये फजल खुदा ने किया हम पर कि हमारी लानतें उसने खत्म कर दी है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम हुक्मों पर अमल नहीं करेंगे। लानतें खत्म कर दी हैं और जानबूझ के कहें कि हाँ खत्म हो गया, और किसी गलती से अमल करना ही नहीं। सिद्ध के साथ हुक्म तोड़ेंगे, आप सजा जरूर पाएंगे। लेकिन अगर नादानिस्ता तौर पर गलती हो जाती, खुदा दरगुजर करेगा अपने बेटे के वसीले से, उसके लहू के वसीला से मुआफ कर दे। और फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं, गलती हो जाए तो पैटर्न वही रहेगा। मत कह के अब हमें जरूरत नहीं है, आज भी हमें 100% कुर्बानी की जरूरत पड़े। फर्क सिर्फ इतना है कि वो जिस्मानी तौर पर जब गुनाह करते ना इसराइली, तो बर्रा अपने साथ लेकर जाते और हैकल में जाकर उसे कुर्बान करके लहू के वसीला से माफी हासिल करते। हमारे लिए फजल ये ठहरा कि यीशु ने अपने बेटे को पहले कुर्बान किया। जिसने भी माफी लेनी है यहाँ झुके, उसके लहू को साथ ले और बाप के सामने उसके बेटे के लहू के वसीला से, ऐ बाप मैं यीशु मसीह के लहू के वसीला से तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे माफ कर दे। और बाइबल ये शहादत देती है कि अगर दिल पर इल्जाम लग जाए तो यीशु के खून के छींटे अपने ऊपर लो और तख्त के सामने दलेरी के साथ आप जा सकते हैं। ये फजल है हम पर कि जब भी जरूरत पड़ती है यीशु का लहू आज भी हमारे लिए मौजूद है, दस्तयाब है। कुर्बानी उनको भी जरूरत पड़ती थी, कुर्बानी हमें भी जरूरत पड़ती। अगर वो ये कहे मैं बगैर यीशु का ही पास हो जाऊंगा, ये उसकी भूल चूक है, ये उसकी गलत फहमी है। तो हम यीशु मसीह के वसीला से अपने आप को बेखमीर समझते हैं, हम पूरी दुनिया को बेखमीर समझते हैं यीशु मसीह के लहू के वसीला से। और ये हमारा ईमान है और ईमान से हम रास्तबाज हैं और उसी ईमान से हम काबिल भी ठहरते हैं। सो तीसरी जो मैंने आपके सामने रखा, पहले फलों की ईद है। और पहले फलों की ईद में यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा हुए तो यीशु करंथियों के खात के मुताबिक मुर्दों में से जी उठने वालों में से पहला फल ठहरे। इसलिए हम यीशु मसीह को उसके जी उठने पर पहला फल मानते हुए पहले फलों की ईद सेलिब्रेट करते हैं। पहले फलों की ईद से शुरू करके 49 दिन तक बनी इस्राएल को कहा कि आपने गिनती करनी और 50वें दिन आपने उन जो कटाई की है उसकी अनाज की फसल का पहला हिस्सा खुदा के सामने पेश करना।
اور یہ وہ وقت تھا یا وقت ہے کہ جب یسوع مسیح آسمان پر گئے، اس کے جانے کے بعد 49 دن گزرنے کے آگے 50واں دن جس دن آیا، عید پینتیکوست کا دن آیا، تو خدا اپنے روح کو اپنے لوگوں پر بھیجتا ہے۔ تو بنی اسرائیل آج بھی جب عید منائیں گے تو وہ فصل کی کٹائی کی عید منائیں گے، پر ملکیت کی کہانت کے اندر ہم جب بھی عید منائیں گے، عید پینتیکوست منائیں گے اور ہم روح القدس کی عید منائیں گے۔ یوں ان کی عیدیں ٹائم پیریڈ وہی رہے گا، پر وہ عکس کے اندر ہوں گی۔ ہم جب منائیں گے تو ہم تکمیل کے اندر منائیں گے، ٹائم پیریڈ وہی ہوگا جو بائبل میں لکھا ہوا ہے، نہ ڈیٹ چینج ہوگی نہ اس کا کچھ اور چینج ہوگا، وہ عکس کے طور پر ہوگا، یہاں تکمیل کے طور پر ہوگا۔ اس کے بعد تین باتیں اور ہیں ابھی تک باقی، جس کو کلسیوں کے خط میں لکھا ہے کہ وہ سبت، وہ عید سایہ ہے۔ اس کو بھی پالوس کی باقی باتوں کی طرح غلط پڑھا جاتا ہے، کوئی ہم پر الزام نہ لگائے۔ تو یہاں پر جو منانا نہیں چاہتا وہ حوالہ رکھ دیتا ہے، کوئی ساتھ الزام نہ لو، اس نہیں مانتے۔ پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر کوئی نہیں مناتا، یہ ریفرنس لے کر وہ یہ کہتا ہے کہ وہ تو مسیح میں عکس تھی، وہ مسیح میں عکس بھی تو مسیح ہے، اسی عکس کدھر ہے تو مسیح کی بات تو کر پہلے عکس میں اسی اور تکمیل ہے تو مسیح بھائی، کیوں یسوع سے اتنی نفرت کرتے ہیں؟ عکس ہے تو بھی یسوع، وہ بنا جو قربان ہو رہا تھا کون تھا؟ ہمارا تو دھیان فوراً جاتا ہے یسوع تھا۔ عدن میں قربان ہو، کوئی موریا پر قربان ہو، جہاں بھی قربان ہو وہ یسوع کی تصویر ہے۔ ہم عکس میں مانے تو بھی یسوع، ہم تکمیل میں مانے تو بھی یسوع۔ تو عکس جو تھا، میں جو آپ کو یہاں پوائنٹ دینا چاہتا ہوں کہ جب کلسیوں کو پولس نے خط لکھا تو یہ کہہ رہے تھے یہ مسیح کا عکس ہے، عکس ہے یا عکس تھی۔ کلسیوں کے خط میں دوسرے باب میں چیک کریں ادھر، ریفرنس تھوڑا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، ایک آدھ میرے آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ مسیح میں عکس تھی۔ اب پولس بھائی کو یہ پوچھے کہ بھائی یسوع مسیح تو ہو کر چلے گئے، یسوع مسیح تو ہو کر اب بھی یہ عکس تھی یا اب بھی یہ عکس ہے؟ یسوع مسیح تو ہو کر چلے گئے اور یسوع مسیح کے جانے کے بعد پولس نے کلسیوں کو یہ خط لکھا ہے۔ تو یسوع کے جانے کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو 4 عیدیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ تکمیل پا چکی ہیں، ہم ان کو تکمیل میں مانتے ہیں۔ فصح پر یسوع قربان ہوتے ہیں، بے خمیر روٹیوں پر ہم بے خمیر ہوئے اس لیے ہم ان کو مناتے ہیں، اور پہلے پھلوں کی عید پر یسوع زندہ ہوتے ہیں، ہم اس لیے مناتے ہیں۔ عید پینتیکوست پر بنی اسرائیل کو توریت ملی ہے، وہ توریت کو یاد کر کے مناتے ہیں، ہمیں روح القدس ملا ہے، ہم روح القدس کو یاد کر کے مناتے ہیں۔ اب اس سے اگلی بات پہ جو نکالے پڑھے ذرا، بس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے، کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہے، مگر اب دیکھیے آنے والی چیزوں کا سایہ ہے، مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں۔ اصل چیزیں آنے والی چیزوں کا سایہ ہے۔ تو آنے والی کون سی چیزیں ہیں؟ میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ 4 عیدوں کے بعد جو 3 عیدیں باقی ہیں ان میں پہلی عید نرسنگوں کی عید ہے، اور بائبل مقدس کے مطابق یسوع مسیح نرسنگے کے ساتھ آنے والے ہیں۔ یسوع مسیح جس دن یسوع مسیح واپس آئیں گے اس دن نرسنگوں کی عید تکمیل پائے گی، اور جب تک وہ آ نہیں جاتے نا، ہم ہر دفعہ جب بھی نرسنگوں کی عید منائیں گے ہم یسوع کو یاد کریں گے، ہمارا یسوع آنے والا ہے، ہمارا یسوع۔ کسی اور کی تو میں بات نہیں سنا رہا ہوں، میں یسوع کی سنا رہا ہوں، ہمارا یسوع۔ تو کیا یہ بات اس کو یاد کرنا بری بات ہے؟ ہمارا یسوع آنے والا ہے، اس کو یاد کرنا بری بات ہے؟ ساری انتظار میں یسوع آنے والا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جو شریعت کے اندر لکھا ہے اس کی تکمیل کیسے ہوگی، ہم تکمیل میں دیکھتے ہوئے کہ نرسنگوں کی عید پر یسوع آنے والے ہیں۔ اور 2 باتیں یہاں پہ سمجھنی ہے۔ لکھا ہے وہ دن تم پر چور کی مانند آئے گا، وہ دن تم پر، پھر لکھا ہے وہ اے بچوں وہ دن تم پر چور کی مانند نہیں آئے گا۔ مجھے پتہ ہے سب تھک گئے لیکن تھوڑا سا، کیونکہ بالکل ہم اینڈ پہ
सब बोलेंगे हालेलुया, फिर से बोले हालेलुया। मैंने बोला कि जो आने वाली चीजें हैं इसके तौर पर हम उनको देख लें। नरसिंहों गीत पर यीशु ने आने थस्सलुनीकियों के खत में पौलुस ने लिखा कि ऐ बच्चों तुम तारीकी में नहीं हो, लेकिन तुम ऐ भाइयों तारीकी में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ। वो दिन चोर की तरह तुम पर है। हम तारीकी में नहीं है और जो तारीकी में उन पर चोर मान जाएगा। तो मैं आपको वाज़ेह करना चाहता हूँ, बाइबल मुकद्दस के अंदर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन ये भी है। मत्ती के इंजील में 24वें बाब में एक आयत लिखी हुई है कि उस दिन को कोई नहीं जानता, ना बेटा ना फरिश्ते, मगर सिर्फ बाप। मगर सिर्फ क्या लिखा है जी? मगर सिर्फ। तो अगर मैं कहूं मैं भी जानता हूं, फिर अगर मैं कहूं यीशु ने कब आना है तो फिर मैं बता दूं आपको। तो फिर ये बाप ने लिखवाया ना, और किसने लिखवाया? जी ये बाप ने तो लिखवाया। समझ गए आप? मैं कह रहा हूँ ये बाप ने तो लिखवाया है। हाँ, ये जो लिखा हुआ है बाप ने लिखवाया हो। एक बात, ये बाप ने लिखवाया तो जिन्हें लिखवाया है अगर वही अंदर आ जाए, एक गवाही तो है ना जी। बेटा भी नहीं जानता, बेटा कौन है? मैं। जो तक मैं कल्ला मैं तो मैं नहीं जानता, मगर सिर्फ बाप। तो रूल कुदस कौन है? रूल कुदस बाप ही तो है। जब रूल कुदस अंदर आएगा नहीं बताएगा, वो तो खुदा के तय की बातें भी बताता है, ये क्यों नहीं बताएगा? क्यों? असि को नेरे से थोड़ी फेर रहे हैं कि नेरे से को टकरा मारन है। हाँ, यही तो बता रहा हूँ। नरसिंह गीत पे आना है उसने, टाइम नोट करें। आना कब है? आना कब है? सुबह 6 के 9 के दरमियान में यीशु ने आना है। तैयारी करके रखें, तैयारी करके रखें। जब आप ड्यूटी पे भाग रहे हो ना, ड्यूटी पे स्कूलों में इधर उधर भाग रहे हो, हफड़ा तफड़ी लगी है कि जो आ जाएगा। बाइबल में दो शहादतें मौजूद है। खरूज 19वें बाब में अभी दिन चढ़ा ही था, पहाड़ कांपने लग गया। अभी दिन खुदा आया नहीं आया? किस टाइम पे आया? सुबह सवेरे पहले टाइम से आया। इधर पेंटिकोस्ट पर कब आया? अभी पैर दिन ही चढ़ा था, वो आ गया। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, अजय पैर देर चढ़ना ही है तो नहीं आ जाना है। दिन कौन सा? नरसिंह गीत का दिन होगा। पैर अभी दिन चढ़ा ही होगा। जैसे पूना वहां पे लेके खड़े थे ना, वहां पे खादम खड़े होंगे, नरसिंगे बजा रहे होंगे, ऊपर से वो बजाएगा, नीचे से ये बजाते हुए आसमान पे चढ़ जाएंगे। ये है बाइबल। आमीन। क्यों नहीं पता? हम कोई अंधेरे में थोड़ी बैठे हुए, हम नूर के सरदार हैं और हम बाइबल को सीखते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल में से पढ़ते हैं। आमीन। अगर कोई नहीं मान रखता उसकी अपनी बात। हाँ, वो जो कंफ्यूजन है, बाप नहीं जानता, बाप जानता है, बेटा नहीं जानता, फरिश्ते नहीं जानते। 24 बाप निकालिए ना, 25वें में जाके पढ़िए, ये तुमको सारा कुछ ही बता रहे। इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा। इब्ने आदम अपने ओ भाई घड़ी फर्क से जो चुप रहना रहे। 25वें बाब में जाइए, वो बता रहा है जब वो इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा, फरिश्ते उसके साथ आएंगे। किसको नहीं पता आने का? वो कह रहा था बाप मुझ में है, बाप तो बाप मुझ में है। मेरे तक तो ठीक है, क्योंकि मैनू तुसी बढ़ाई का बेटा समझते। मेरे बारे स्टेटमेंट है कि बहना साढ़े नहीं आई है। मुझे बहनों से भाइयों से नापते हो, मुझे थोड़ा ऊपर वाले के हिसाब से नाप के देखो। वो दिल की बातों को जानता है, वो गुजरे वक्तों को जानता है, वो आने वाले वक्तों को जानता है। कोई बात उसके सामने पोशीदा नहीं है। वो बताता है 25वें बाब में जाकर वो भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा। क्यों नहीं पता उसे? हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूं ताकि आपको फायदा हो। याद रखिए, मत्ती के 24वें बाब में यीशु मसीह वहां पर बैठ के जैतून के पहाड़ पर बैठे हुए 7 मोहरों को खोल रहे थे।
पैगाम रिकॉर्ड है, किसी जगह पे आपको मिल जाएगा, मेरा पैगाम चल रहा हो किसी जगह पे, नहीं तो कोई सीखना चाहे तो बता सकता हूँ। सतून के पहाड़ पर बैठा बर्रा मोहरों को खोल रहा था, और जब उसने ये कहा ना कि कोई नहीं जानता, तो इसका मतलब कोई नहीं जानते का मतलब सातवीं मोहर के साथ था, क्योंकि जब आसमान पर सातवीं मोहर का जिक्र आया ना, आसमान पर खामोशी हो गई। ये सब था, यीशु बताना ही नहीं चाहता था कि सातवीं मोहर में होने वाला है, 6 मोहरें खोलेगी, यीशु सब कुछ बताता है क्या क्या कुछ होने वाला है, पर सातवीं मोहर में क्या होगा जैसे खामोश रहे, पता नहीं क्यों, बात को पलटने के लिए। सातवीं मोहर क्योंकि खामोशी है, उस खामोशी की वजह से यीशु ने कहा बाप जानता है, ये थी वजह वो कहने की। इसलिए से आपको उस बात में पढ़ना और खुदा के रूह के मुताबिक पढ़ने से आपको बरकत मिलेगी, आप आगे बढ़ सकते हैं। सो नरसिंहों की पर यीशु ने आना है, मैंने टाइम फ्रेम आपको बता दिया। आगे यौम कफारा की बात है। यौम कफारा का मतलब होता है जजमेंट होना, डे ऑफ द जजमेंट। बनी इस्राएल की अदालत होती थी। इस दिन भी जब यीशु ने आना तो अगला काम क्या है, जमीन पर अदालत कायम होगी और तब किताबें खोली जाएंगी। जिस किसी का नाम किताब में लिखा हुआ ना मिला उसको फेंक दिया जाएगा। ये डे ऑफ द जजमेंट के अंदर होगा, यौम कफारा पर होगा। इसलिए लिखा हुआ है कि हर शख्स अपनी जान को दुख दे। हम अपनी जान को दुख देते हैं, अपना नाम किताबें याद में चेक करते हैं, खुदा के सामने रोते भी हैं, माफी भी मांगते हैं। कोई गलती हो जाती है उसका कसूर मान के खुदा से माफी भी मांगते हैं और चाहते कि खुदा हमारा नाम किताबें याद से ना हटाए। और साथ में झोपड़ियों की ईद है जिसको ईद ख्याम कहा जाता है, और झोपड़ियों की ईद को गैर कौमों की ईद कहा जाता है। झोपड़ियों की ईद को गैर कौमों के साथ साथ खुदा के लिए खास मिशन की ईद कहा जाता है, या फिर 1000 साल बादशाही का जश्न कहा जाता है, या फिर यीशु मसीह के पैदा होने की ईद कहा जाता है। क्यों? इसकी दलीलें बाइबल के अंदर मौजूद है। क्योंकि यीशु मसीह को मुकाशवा की किताब में जाके पढ़ेंगे तो लिखा है खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है। यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 14 को पढ़ेंगे तो यीशु मसीह को खुदा का खैमा कहा गया है। वो खैमा है जो जमीन पर लगा, और उस खैमे में खुदा मुजस्सम था। उस खैमे में खुदा मुजस्सम था। तो यूं हम जब 1000 साल बादशाही के जश्न को मनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं, जैसे मुकाशवा की किताब में लिखा है ना, हाथों में डालियां खजूर की और सफेद जामे पहने हुए बर्रा के तख्त के सामने खड़े हैं। हम इसी तरह से इस जमीन पर 1000 साल बादशाही के जश्न को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि एक वक्त आने वाला है जिसमें हम सफेद सूट पहन के हाथों में डालियां लिए हुए बर्रा के सामने खड़े होंगे और बर्रा की तारीफ कर रहे होंगे। हम ये भी अक्स के तौर पर जमीन पर मनाते हैं कि हमारा यीशु आने वाला है और जमीन पर 1000 साल बादशाही कायम करने वाला है। तो अभी तक मैंने बड़ी ध्यानदारी के साथ जो मुझे समझ में आता है जल्दी से मैंने उनको कवर करने की कोशिश की है। जो भी बात किसी को समझ में है उसके लिए आप खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। मुझसे कुछ सवाल करना है आप वो भी कर सकते हैं, आपके लिए आजादी होगी। हाँ, एक चीज याद रखनी है कि जो बातें मैंने की हैं उनमें से सवाल करना है। ये बात आपकी ऐसी है, इसके बारे में बता दें, मैं आपके लिए बताने के लिए तैयार हूँ। वो बातें नहीं कहनी कि जो मैंने की नहीं है आप वो कहते रहे, आप ये मानते हो, आप ये मानते हो। मैं जो मानता हूँ, हम जो मानते हैं, हमने जो बाइबल से सीखा, 2 कहानियों के बारे में, एक लावी की कहानी है जो अक्स के तौर पर है, एक मलकीसेदेक की कहानी है जो तकमील के तौर पर है। लावी की कहानी का जो सरदार कायन है वो हारून कायन है, मलकीसेदेक की कहानी का सरदार कायन यीशु मसीह है। यहाँ पर अक्स के अंदर कुर्बानियां हैं, यहाँ पर तकमील के अंदर कुर्बानियां हैं। यहाँ पर अक्स के अंदर ईदें हैं, यहाँ पर तकमील के अंदर ईदें हैं। जितनी भी बातें हम करते हैं रूह में करते हैं, तकमील में करते हैं, यीशु मसीह को सामने रखते हुए करते हैं, उसके बगैर हम कुछ नहीं करते हैं। क्योंकि हमारा यही ईमान है कि ये कलाम सारे का सारा खुदा का है और हम बनी इस्राएल कौम के अंदर कबल किए गए हैं। हम कोई अलग से ग्रुप नहीं है। हिजकिय्याह की किताब में ऐसा लिखा है, दो लाठियों की तमसील दी गई है, 2 अहदों की दी गई है, 2 लाठियां अलग अलग थी, इनको जोड़ दिया गया है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है उस वक्त एक ही गल्ला होगा, एक ही चरवाहा होगा। हम इस बात को मानते हैं कि आने वाले दिनों में 1000 साल बादशाही में इजराइली और हम एक ही कौम होंगे। वो भी बेड़े हैं, हम भी बेड़े हैं, उनका और हमारा जुबान एक ही है और वो यीशु है। आमीन। हम यीशु के बगैर किसी और को नहीं मानते हैं।
میں نے واضح طور پر بتایا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی ہم پر الزام لگاتا ہے ہم اس کے قائل نہیں ہیں نہ ہم اس کے جواب دیں. ہم جو مانتے ہیں ہم نے بڑی صفائی کے ساتھ اب تک رکھا ہے کہ ہم شریعت کو، بائبل کو تکمیل کے روپ میں مانتے ہیں، یسوع مسیح میں مانتے ہیں.